کیا اللہ پاک نے ہمیں اپنے نبی والا کام عطا فرمایا ہے. نبی کے کام سے اللہ پاک انسانوں کو اچھے جینے کے طریقے دیتے ہیں. ان کے اگر ان کو صحیح طریقے نہ ملے تو پھر وہ ایسے جینے کے طریقوں پر پڑ جاتے ہیں کہ بعض طریقوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جانور بن جاتے ہیں. لیکن یوں فرمایا کہ جانور سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں. کہ جانور دنیا میں ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اس پر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ جانور کسی کو پھاڑ کھاتا ہے، کسی کے بکری کو مار لیتا ہے، کسی کے گھر میں گھس جاتا ہے، کسی کے کھیت میں گھس جاتا ہے. آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی جانور ہے. لیکن دنیا میں بیسیوں انسان ایسے ملیں گے کہ جو اپنی سوجھ بوجھ شعور کے باوجود ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اس سے بھی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں. انسانوں کو صحیح جینے کے طریقے جو ملتے ہیں وہ نبیوں کے راستے سے ملتے ہیں. نبیوں کی محنت کے ذریعے سے انسان بنتے ہیں. نبیوں کی محنت کے ذریعے سے انسانوں کو جس ماحول میں رہنا ہے اس ماحول میں پاکی وجود میں آتی ہے، حیا وجود میں آتی ہے، جینے کی اچھی شکلیں وجود میں آ جاتی ہیں. ورنہ اس دنیا کو آپ دیکھو تو دنیا سوارتھی ہے، لالچی ہے، ہر ایک دوسرے سے لالچ کرتا ہے. لالچ اللہ کی بڑی نعمت ہے جبکہ وہ صحیح روپ سے استعمال ہو. بھائی ڈاکٹر صاحب کے دل میں لالچ ہے پیسے کمانے کی تو رات کو 12 بجے تک بیٹھتا ہے. اگر اس کے دل میں سے اللہ لالچ کو ختم کر دیں اور اس کے دل کی 1000 روپے کی ضرورت ہے، صبح صبح اس کو 1000 روپے کے پیشنٹ مل گئے، اس کے دل سے اللہ نے لالچ ختم کر دی تو پھر وہ دواخانہ بند کر کے چلا جائے گا. تو پھر پیشنٹوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کے دل میں لالچ رکھ دی تو اس کی لالچ کی وجہ سے پیشنٹوں کی ضرورت پوری کرواتے ہیں. ایک اللہ کی نعمت ہے. محلے میں دکان کرانے والے ہوتے ہیں، کیسی کیسی دکان والے، ان کے دلوں میں لالچ اللہ نے رکھ دی پیسے کمانے کی. ان کی لالچ کی وجہ سے وہ بیٹھے رہتے ہیں دیر تک اور لوگوں کی ضروریات پوری کی جاتی ہے. لالچ اگر اس کے دل سے اللہ لالچ نکل دیتے اور اس کے دن بھر کی ضرورت 500,000 روپے کی ہے، وہ صبح صبح مل گئی، پھر اس کے بعد وہ تالا لگا دے دکان کو، تو دن بھر میں محلے والوں کا کیا حال بنے گا؟ تو لالچ یہ بھی اللہ کی رکھی ہوئی ایک چیز ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال، اگر صحیح استعمال نہ ہو تو پھر بیٹا باپ سے لالچ کرتا ہے، سگا بھائی بھائی سے سوارتھ کرتا ہے، بیوی شوہر سے سوارتھ کرتی ہے، شوہر بیوی سے سوارتھ کرتا ہے، اور سوارتھ پورا نہ ہو تو پھر ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، سوارتھ کرتے ہیں. سب سے پہلا خون اس زمین پر جو ہوا وہ سوارتھ میں ہوا. آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے تو ان کے نکاح کی تقریب کی گئی تو ایک نے تمنا کی کہ فلاں سے میرا نکاح ہونا چاہیے، اور جب کہ طے ہو گیا تھا کچھ تو دوسرے کا ہوگا، تو سوارتھ ہوا. تو اپنی چاہت پوری نہیں ہوئی تو سب نے بھائی کا مرڈر خون کر دیا. تو نبیوں کی محنت جذبات کو صحیح بناتی ہے، فکر کو صحیح بناتی ہے، سوچ کو صحیح بناتی ہے، جینے کے طریقوں کو صحیح بناتی ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس زمانے میں ہمیں وہ محنت عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے سے افراد بھی بنتے ہیں اور جس کے ذریعے سے ماحول بھی بنتا ہے. ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضور کی بعثت جس ماحول میں ہوئی ہے وہ ماحول کیسا تھا کہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے. ایسی جہالت کہ اس کا تصور نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد، اس تب سے لے کر آج تک کسی نے کیا ہے. اس زمانے سے لے کر آج تک کسی نے بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کیا.
उस जमाने से लेकर आज तक किसी ने अपनी लड़की को जिंदा दरगोर नहीं किया। कि सबसे बुरा माहौल था, 600 साल की जहालत भरी हुई थी। तो अफराद में भी बुराई आ गई और माहौल में भी, कि उन बुराइयों को अच्छा समझा जाने लगा, बुराइयों को अच्छा समझा जाने लगा, शराब पीना अच्छा समझा जाने लगा, लड़की को दरगोर करना अच्छा समझा जाने लगा। उन्हीं अरब में कबीला था, उस कबीले की आदत यह थी कि जब उनके घर में बच्ची बालिग होती थी तो अपनी बालकनी में घर के कपड़ा लटका देते थे। मोहल्ले के जवान देखते थे कि यहाँ बालकनी में कपड़ा लटका, इसका मतलब कि इस घर में लड़की बालिग हुई है। तो वो रात गुजारने के लिए उस लड़की के पास जाते हैं। आज ये लड़का, दूसरे दिन दूसरा लड़का। जब बच्ची की विलादत होती थी तो बच्चे की वहाँ विलादत हो जाए तो उसके बाद लड़के को देखा जाता था कि मोहल्ले के किस जवान के ये मुशाबे है। जिसके मुशाबे होता उसके साथ निकाह करवाया जाता और इसको ऐब नहीं समझा जाता था कि इतने भरे हुए थे। इन सारी चीज़ों में जो तब्दीली आई अफराद में भी और उनके माहौल में भी, वो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की मेहनत से हुई। मांग ऐसा फरमाते थे कि मैं इस मेहनत को कारे नबुव्वत यकीन करता हूँ। इसका मतलब कि जब जब भी नबी वाली मेहनत की जाएगी और ऐसे की जाएगी जैसे इसको करना है, तो इसके असरात वो जाहिर होंगे जो करने वाल में जाहिर हुए हैं। किससे लोग भी बन जाएंगे और जिस माहौल में इसको किया जाएगा वो माहौल भी बन जाएगा। मौला रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये मेहनत शुरू की तो मेवात के उस इलाके में की थी कि जो इलाका सबसे खस्ता शुमार होता था, सबसे अजीब व गरीब के डाका खोरी थी और पता नहीं गोबर की पूजा थी और पता नहीं क्या क्या उनमें खराफात थे। जब उनकी तारीख पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें थी, लेकिन सही रुख की जब मेहनत हुई तो उन्हीं में माशाल्लाह अच्छे अफराद वजूद में आ गए। दीनी म्यार उनका ऊपर चलता गया, खैर खाई वजूद में आई, हमदर्दी वजूद में आई, सारी की सारी भलाई वजूद में आ गई। इसका मतलब है कि जिन इलाकों में की जाएगी, जिन अफराद पर की जाएगी, उनमें ये मेहनत अगर सही हुई तो ये तासीर वजूद में आएगी, बशर्ते कि वो मेहनत अच्छी हो, सही रुख से हो। दुनिया में जितनी भी मेहनतें हैं उसके दो असरात होते हैं, मनफी और मुस्बत, पॉजिटिव और नेगेटिव। हर चीज़ अच्छा असर भी रखती है और हर अमल मनफी असर भी रखता है। जैसे नमाज अगर अच्छी है तो आसमान पर जाती है, दुआ देती है, हाफिज़कल्लाह हाफिज़नी। और अगर वही नमाजी ने पढ़ी है लेकिन सही नहीं पढ़ी तो वही नमाज ये कहती है ज़य्यअकल्लाह कमा ज़य्यतनी, अल्लाह तुझे ऐसे बर्बाद कर दे जैसे तूने मुझे बर्बाद किया। कि नमाज पढ़ भी रहा है और मनफी असर हो रहा है। कुरान पढ़ना अगर अच्छा पढ़ा जाए तो उसके आसमान पर जाने का जरिया बन जाता है, आसमान पर जाता है पढ़ा हुआ। और उसी पढ़ने को अगर कोई गलत कर दे तो फिर उसके मनफी असर आता है। रुब्बा क़ारिइन वल कुरान यलानु अलैहि, बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले वो हैं जिन पर कुरान खुद लानत करता है। ऐसी हुजूर वाली है मेहनत। बहुत सालों पहले लखनऊ में एक इज्तिमा हुआ था जिसमें हज़रत मौलाना मंजूर नामानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान उसमें फरमाया कि अगर इसको अच्छे से किया जाएगा जैसे करना है तो साल हर साल में आने वाली खैर सलवटों में आते होंगे। ये उसके मुस्बत असरात हैं। और खुदा न करे अगर इसको सही नहीं किया गया तो उसके अलावा की दूसरी चीज़ वजूद में आएगी। तो हमको अल्लाह ने तौफीक दी है उस मेहनत को करने की, उस मेहनत में लगने की, जिसके ज़रिए से हम सब संभल रहे हैं, हम सबको संभाला मिल रहा है। हम सब अपनी पिछली ज़िंदगी का जायज़ा लें। हम कैसे थे जब तक मेहनत में नहीं लगे हुए थे, हम सब कैसे थे। अल्लाह पाक ने सहाबा को ये बात फरमाई कि आप अपनी पिछली ज़िंदगी पर गौर करो, तुम कैसे थे और दीन ने तुम्हें कैसा कर दिया। उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन, तुम तो दुश्मन थे, हमारा नबी आया उसने तुम्हें भाई बना दिया।
तो हम सब देखें कि हमारी पिछला ज़माना कैसा था। मेहनत के ज़रिए से हम सबको संभाला मिला, हमारे घर का माहौल बना, हमारे मोहल्ले के माहौल बन गया। वरना दुनिया में ऐसे मोहल्ले हैं, ऐसा माहौल है कि आदमी सुकून से बैठ नहीं पाता। लोग एक इलाके में गए थे, एक साथी से मुलाकात में, तो मुलाकात पूरी हो गई, वो उठने नहीं दे रहे। अरे भाई क्या बात हो गई, इजाज़त? 1.5 घंटा हो गया। उसके बाद उसने कहा कि आप जा सकते हो। अरे भाई क्या बात हो गई? उसने कहा कि मेरे घर में मेरी लड़की का दोस्त आया हुआ था, बॉयफ्रेंड। तो मैंने आप लोगों को इसलिए बिठाया कि आपकी शर्म में मेरी लड़की कोई चीज़ और दूसरी न करे। वो हमारी तो शर्म न करती, लेकिन आपकी शर्म में और कोई दूसरी चीज़ न करे, इसलिए इतनी देर आपको बिठाए रखा। वो अब चला गया, अब आपको भी जाने की इजाज़त है। जब माहौल नहीं बनता मोहल्लों का, तो घर भी महफूज नहीं रह पाते, अफराद नहीं महफूज हो पाते, घर महफूज नहीं हो पाते। आप अपने पीछे पर एहतसाब करें कि हमारा क्या हाल था, हमारे इलाकों का क्या हालात थे। अल्लाह पाक ने नबी वाली मेहनत चलाई, जिसके ज़रिए से हमें भी संभाला मिल गया, हमारा माहौल बन गया। और उसके अलावा हम और अफराद को मुतफक्किर करने का ज़रिया हम बने। जिन जिन इलाकों में चलना फिरना हो रहा है, उन इलाकों में हम खैर के वजूद में आने का ज़रिया बन रहे हैं, हमारे इन्हीं साथियों के ज़रिए से, हमारे ज़िलों के देहातों में। और जब चिल्ले चारमीनी में जाते हैं, तो जिन जिन इलाकों में, जिन जिन सूबों में जाते हैं, वहाँ हम बहुत बड़ी खैर के वजूद में आने का ज़रिया बन जाते हैं। ऐसी ताकतवर चीज़ अल्लाह ने हमको दी। शैतान कोशिश ये करता है बंदों पर कि ऐसी बड़ी चीज़ की तरफ वो मुतवज्जह न हो, ताकि ना वो संभले, ना उनसे दूसरे लोग संभले। इसलिए दुनिया में बहुत बड़ा मजमा वो है जो इसको अच्छा समझता है, लेकिन कर नहीं पाता। अच्छा समझता है, अच्छा कहता है, लेकिन कर नहीं पाता। तो अल्लाह की तरफ से तौफीक शामिल हाल नहीं है, या शैतान कोई ना कोई हवारिस पेश कर देता है कि वो इसमें चले ही नहीं। अल्लाह का फजल है कि हम लोग उनमें से नहीं हुए, अल्लाह ने हमको चला भी दिया, तौफीक भी मिल गई, चल भी पड़े। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि जो चल रहे हैं उन पर शैतान क्या कोशिश करेगा? उन पर शैतान ये कोशिश करेगा कि ये अब कर तो रहे हैं तो अच्छा ना करें, ताकि इसके अच्छे असरात इन्हें न मिले। क्योंकि उस अमल का असर मिलेगा जो अच्छा होगा, वो नमाज असर करेगी जो अच्छी होगी, वो तिलावत असर करेगी जो अच्छी होगी, वो रोजा असर करेगा जो अच्छा होगा, और अच्छा नहीं होगा तो असर नहीं करेगा। ऐसे वो मेहनत असर करेगी जो, वो खुरूज अल्लाह के रास्ते में वो जाना अच्छा असर करेगा जो अच्छा होगा। अगर अच्छा खुरूज होता है तो आदमी को कुतुब बना देता है, और अगर अच्छा निकलना बिगड़ जाए तो आज़माइश रहमतुल्लाह अलैह का मैं एक बयान पढ़ रहा था, जिसमें पढ़ा कि वो ऐसा बिगड़ जाएगा कि यहाँ का बिगड़ा हुआ फिर कहीं बनेगा भी नहीं। ऐसा हज़रत ने लिखा, फरमाया कि 2 जगह का बिगड़ा हुआ फिर कहीं बनेगा ही नहीं। हज़रत ने फरमाया एक मदरसे में जाकर कोई बिगड़ जाए, और एक कोई अल्लाह के रास्ते में जाकर बिगड़ जाए। लोग बिगड़ते हैं। अभी हम लोग बांग्लादेश इज्तिमा में गए थे, एक साथी वहाँ मिले कि मैं जमात में चल रहा हूँ और मेरा ये फलां चिल्ला चल रहा है, लेकिन इस चिल्ले में सिगरेट की आदत मुझे पड़ गई। सिगरेट की आदत पड़ गई। मैंने उसको पूछा कैसे आदत पड़ गई? कहा मेरे साथ दोस्ती जमात में ऐसे साथियों से हो गए, सिगरेट की आदत पड़ गई और फला चीज़ की। इससे अगले 2 चिल्लों में इसकी आदत मुझे नहीं थी। तो लोग बनते भी है और निगरानी न करें तो बिगड़ भी जाते हैं। और न फरमाएं अगर अच्छा निकलना हुआ तो आदमी को बुजुर्ग बना देगा, और निकलने में खराबी आ गई तो फिर ऐसा बिगड़ेगा कि, तो जैसे खुरूज में अच्छी चीज़ असर करती है, ऐसे वापसी के बाद जो हम मकामी अपनी मेहनत करते हैं, उसमें भी अगर अच्छी मेहनत होती है तो अच्छी मेहनत आंधी को संभाल देती है, घर संभल जाता है, मोहल्ले संभल जाते हैं, फिजा बन जाती है। और अगर वो मेहनत अच्छी न हो या इतनी न हो जितनी होनी है तो फिर उसका असर होगा। इसलिए ये कारीगरी का एक अमल होता है, ये रस्मी चीज़ नहीं है, ये हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे जनों में होता है कि भाई तो हम साल से कर रहे हैं, सब कुछ हमें पता है। ये चीज़ नहीं है, ये नबियों वाली मेहनत है। उसमें 2 चीज़ें मतलब होती है, एक इतनी की जाए जितनी ज़रूरत है, और ऐसी की जाए जैसी कही जा रही है, तो नफा देती है। भाई ज़ोहर की 4 रकात पढ़नी है तो 3 से काम नहीं बनेगा, 4 पढ़नी पड़ेगी, और 4 पढ़ी और ऐसी ना पढ़े जैसी पढ़ने को कही गई तो भी काम नहीं होगा।
तो पढ़ना भी अच्छा बनाना है और इतना पढ़ना है जितना पढ़ना है, तो थोड़े वक्त में काम हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो साल हर साल तक पढ़ता रहा तो भी साल हर साल का अमल भी उसे नफा नहीं देगा। तो कैफियत और कमियत, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही करने को हमसे कहा जा रहा है। अरे भाई यहाँ पानी है, यहाँ पानी 100 फीट पर है, एक आदमी ने खोदना शुरू किया, खोदते खोदते 99 तक चला गया, 99 फीट तक पानी नहीं मिला, और वहां पानी कितने पर है? तो उसने कहा मैंने तो 99 खोद चुका, पानी नहीं आया, तो आप क्या कहोगे? अरे बोलो भाई, क्या बोलोगे आप? अभी 1 फुट खोदना वो पूरा करो, ऐसा ही कहोगे? तो उसने जितनी मिकदार है वो पूरी नहीं की। अच्छा, एक आदमी ने मिकदार पूरी की, यहाँ 10 फीट खोदा, यहाँ 10 फीट खोदा, यहाँ 10 फीट, 10 फीट के 10 गड्ढे बना दिए। इसने कितना खोदा? अरे बोलो भाई, 100। और पानी कितने पर आ रहा था? तो इसने कितना खोदा? पानी आ जाएगा। क्यों जी? फिर तो उसकी तरतीब बदल गई। हमसे कमियत भी बदलोगे और कैफियत भी अच्छी हो और उसकी कमियत भी अच्छी हो। हमारे जो अमाल हैं उन अमाल का यहाँ बार बार उदाहरण इसलिए होता है कि हमारी मस्जिदों में जितना हो रहा है उसमें भी इजाफा हो और जो हो रहा है उसकी कैफियत में भी अच्छा इजाफा हो। तो इसके लिए यहाँ साथियों को बुलाकर एक एक अमल को पूछा जाता है। किसी को मस्जिद और जमात का पूछ लिया, किसी को 2.5 घंटे का पूछ लिया, तो हम इसको तवज्जो से सुनें। ये ना समझें कि ये तो हम 16 साल से करते हुए आए, हम जानते हैं, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमको समझाया सुझाया, लेकिन हम और अच्छा करने वाले बने। शैतान हमारे साथ लगा हुआ है, वो ये सोच चाहता है कि भाई कर तो रहे हैं लेकिन करते करते ये सुस्त हो जाए या ऐसा ना करें जैसा करना चाहिए, ताकि इस अमल का उसको नफा ना हो। इसलिए हमें इसी जहन से सुनना है कि हमें ऐसे कर रहे हैं जैसे हमारे बड़े हमको करने को समझाते हैं, ताकि थोड़े वक्त में ये करके हम अच्छा नफा उठाने वाले बने। सब नियत करते हैं, सोएंगे तो नहीं, सोएंगे भी नहीं, बातें भी नहीं करेंगे। किसी मस्जिद वालों से कोई बात पूछी जाएगी तो ये तो एक आध मस्जिद में बुलाएंगे, सारी मस्जिदों को तो बुला भी नहीं सकते, तो किसी मस्जिद को बुला लेंगे, तो वो सब मस्जिद वाले ऐसा समझे कि हमसे पूछा जा रहा है। और जो बात किसी को कही जाए वो सब अपनी मस्जिद पर गौर करें कि हमारे वहाँ ये कैसे हो रहा है, तो इंशाल्लाह हमारे लिए नफा होगा। करेंगे इंशाल्लाह। भाई आप आ जाए। कहाँ से आप? दियोदर। माशाल्लाह। आपके मस्जिद में कितनी मस्जिद है? आपके गांव में कितनी मस्जिद है? हमारे गांव में 3। आपके मस्जिद में कितने मकान हैं? 190। 190। 4 महीने वाले? 4 महीने वाले 43। और साल वाले मौलवी साहब और उलमा? साल वाले उलमा 4 महीने वाले साल वाले हैं? साल वाले एक उलमा है हमारे। और 4 महीने वाले? 4 महीने वाले 6। माशाल्लाह। और चिल्ले वाले लोग? चिल्ले वाले उलमा आपके मस्जिद में? हाँ, हमारी मस्जिद में 5। और आपके मस्जिद में 4 महीने वाले 43 है। माशाल्लाह। आपके मस्जिद में मशवरा कब होता है? सुबह फजर बाद होता है। और कितने लोग इसमें बैठते हैं, ज़रा सुनाओ मशवरा आप लोग कैसे करते हो, और आपके मस्जिद के 2.5 घंटे की मेहनत कैसे होती है, दोनों ज़रा सुना दो। फजर के बाद होता है। हाँ, फजर के बाद मशवरा होता है। हाँ, उसमें 30 साथी बैठते हैं। माशाल्लाह। तो 6 हमारी जोड़ियाँ बनी हुई हैं मुलाकात की। माशाल्लाह। कारगुजारी लेते हैं हम। हमारे 3 हल्के हैं छोटे छोटे। हल्के वाइज कारगुजारी, हल्का नंबर 1 इसकी जोड़ी एक है, 2 नंबर की 3 जोड़ियाँ, और हल्का नंबर 3 की 2 जोड़ी है। तो कुल मिला के 6 जोड़ी की कारगुजारी होती है। कुल मकान 150 190 मकान। 190 मकान। 190 मकानों में 6 जोड़ियाँ काम करती है। 6 जोड़ियाँ। एक जोड़ी में कितने आदमी हो गए? 5 आदमी। 5 आदमी, 6 पंचा 30। तो एक जोड़ी के ज़िम्मे कितने मकान होते हैं? एक जोड़ी के जिम्मे हमने हल्के वाइज तकसीम की है 20, 15, 20 मकान। ज़्यादा आएंगे। 15-20 करोगे तो 5 जोड़ियों के 100 मकान होंगे, तो नहीं वो मकान कौन करेगा? इसमें मकान ऐसे हैं ना कि वहाँ मुलाकात में नहीं जा सकते, निकलना होता है लेकिन मुलाकात में नहीं जा सकते। अच्छा, गैर मानूस है।
गैर मानूस नए हैं या पुराने हैं, पहले से वहाँ रहते हैं? नहीं, पहले से अच्छा, पहले से रहते हैं। एक मस्जिद वो है, 2 मस्जिद दावत की बस्ती में। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो सब जगह होता है। तो वो 90 मकान आपकी अतराफ में है ना, हाँ लेकिन आपके कहने के मुताबिक वो गैर मानूस है और पहले से है हाँ ना? अच्छा, तो उसको आपने मुलाकातों में तकसीम नहीं किया, बराबर? मुलाकातों में आते हैं लेकिन मुलाकात नहीं होती। आपने जो फरमाया जब हमने 15-20 मकान एक जोड़ी को दिए तो वो या 5 जोड़ियों को 100 मकान हो गए, तो फिर ये 90 मकान बजाय मुलाकातों में तकसीम हुए? हाँ, वैसे तो तकसीम कर लिया हमने हल्के वाले। अच्छा। जैसे हमारा हल्का नंबर 1 में 61 मकान है, 2 नंबर में 47 है। तो आप वो क्यों नहीं बोलते पहले से? आपने जब गिनाया कि आपके के मकान जोड़ी के सामने कितने मकान, तो जब हल्का 1 के 61 है तो आपको 61 बोलना चाहिए या 20 बोलना चाहिए? हाँ, 1 नंबर 61 मकान है, तो 61 है, लेकिन इसमें मुलाकात में वो तो अभी मैं बाद में पूछूंगा आपसे, पहले तो ये कि तकसीम कितने हुए? 61, हाँ तो जो 190 मकान आपने तकसीम कर दिए हैं, यही हुआ? हाँ माशाल्लाह, अल्लाह बहुत बहुत हिदायत करते, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो फिर क्या करते हो मशवरे में? आपके मकान तकसीम हो गए, फिर कारगुजारी लेते हैं और कारगुजारी में मुलाकात हुई कि नहीं, अगर नहीं हुई तो फिर देखिए क्या होगा, इसको तरगीब देते हैं। फिर ये थोड़ी कमी बेसी रहती है कारगुजारी में। सुबह में 6 जोड़ियाँ बनी हैं, इसमें कभी 4 भी होती, कभी 5 भी होती, कभी 6 भी हो जाती। थोड़ी तरगीब देते हैं, फिर हल्कों में बिठाते हैं। मोहल्ले की जमात बैठ जाती है मोहल्ले की जमात बैठ जाती मशवरे के बाद? है, मशवरे की बात। मशवरा कितनी देर होता है? 10 मिनट। माशा। और फिर जो मोहल्ले की जोड़ियाँ बैठती है वो कितनी मिनट बैठती है? हाँ, वो भी 5-7 मिनट बैठ जाता है। अच्छा, उसमें क्या करते हैं? उसमें जो तकसीम किए हुए मकान, उसमें घर घर की मुलाकात, आप किसके घर का नंबर है, कोई इत्तला देना है, कौन से वक्त में, मगरिब में, ईशा में, काबू में आ सकता है, तो इसी उन्वान से सुबह में तय हो जाता है। बहुत अच्छा। तो कोई आज जो मुलाकात करनी है उसकी मुलाकात का क्या निज़ाम रहे, वो चीज़ सोचते हो आप? बहुत अच्छे। इस निज़ाम से जब आप मुलाकातों में जाते हो हाँ, तो फिर मुलाकात कैसे करते हो? फिर हमने तय कर लिया मगरिब बाद और ईशा बाद हमारी जमात होती है मुलाकात की, और एक जमात फजर बाद है इशराक के बाद। तो इस उन्वान से हम मगरिब बाद जाते हैं, या तो ईशा बाद बोलते हैं तो ईशा बाद जाते हैं, और फिर आधा घंटा मुलाकात करते हैं। घर वाले जो वक्त देते हैं उस वक्त करते हो? बहुत अच्छा। अगर वो ईशा बाद बोलते हैं तो ईशा बाद ठीक, मुलाकात घर में बैठ कर करते हैं? बैठ के करते हैं। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। और क्या बात करते हो? बस ईमान आखिरत की माशाल्लाह, बात करते हैं, 6 नंबर की बात करते 6 हैं। नंबर की। वाह भाई वाह। और फिर आखिर में तश्कील करते और हैं? फिर तश्कील अचारने कब लगे थे, क्या तरतीब है 4 महीने की, तश्कील करते हैं। साल की तरतीब है जो इनकी बराबर है कि नहीं, बहुत अच्छी मुलाकात है। फिर 3 दिन में घर की तालीम, बहुत अच्छा। घर की तालीम की, बच्चों की दीनी फिक्र की, वो सब बात आप करते हैं ना? जो कमी पेशी होती है 2.5 घंटे वगैरह, उसमें पहले गश्त की पाबंदी होती है, तो दूसरी गश्त की पाबंदी नहीं होती। तो ये भी जवान में होता है कि आपका पहला गश्त होता है, दूसरा नहीं होता। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। और आखिर में तश्कील कर लेते हैं। फिर तश्कील करते हैं। तो इस तरतीब पर आप मुलाकातें करते हैं तो आपके मकान कितने दिन में पूरे हो जाते हैं? वैसे तो तरतीब से करते हैं ना तो महीना भी हो जाता है पूरे करते करते, ताकि बीच में उन्वान आ जाता है, कोई 3 दिन का, कोई किसी दूसरे गश्त में, पहले गश्त में मुलाकात कभी नहीं भी होती, जब पहला गश्त होता है, दूसरा गश्त होता है, 5 गोशा होता है, उसी दिन छूट भी जाता है। अच्छा, तो 4 दिन मिलते हैं। 4 दिन में। और सुबह में तो रोजाना होती है, एक जमात तो बराबर काम करती है। वो तो अपने मोहल्ले में करती हो? नहीं, मैं तो अभी आपके घर में पूछ रहा हूँ। आपके जो मकान है 61 मकान मसलन आपके, 61 मकान में से आपके कहने के हिसाब से गैर मानूस कितने हैं उसमें? हाँ, 61 में वैसे
गैर मारूफ से 10 मकान है। 10 मकान। तो आपके कहने के हिसाब से आप 50 मकान में बैठ कर बात करते हैं, 10 मकान आपकी गुजर जाते हैं, हाँ। यही हुआ? हाँ, तो उन 50 मकानों में आप रोजाना कितना वक्त देते हैं आपकी जमात? रोजाना एक जमात का हमारे मगरिब से अभी तो आपकी जमात की कर हाँ, मैं मगरिब से ही शाम मगरिब से इशा। तो आप 2.5 घंटे पूरे नहीं लगाते? पूरे लगाते भाई, वो कब लगाते हो? सुबह में भी लगाते। अच्छा, वाह भाई वाह, माशाल्लाह, अल्लाह बहुत इस्तकामत दे, बहुत बहुत कबूल फरमाए। तो आप एक घर की आधा घंटा मुलाकात में लेते हो, तो वो 2.5 घंटे में कितने मकान हो जाए? इसे 2.5 घंटे में तो 5 मकान हो जाए। हाँ। फिर आप जो कह रहे हैं कि हमें ये मकानों को करने में महीना लग जाता है, तो अगर रोज़ाना 2 मकान करें तो 25 दिन, और 3 मकान करें तो 15 तारीख 20 तारीख, और 4 मकान करें तो आपको महीना क्यों लग जाता है? इसमें हमारा जो शाम का जो नज़्म है ना, वो तो बराबर है ना, एरिया वाइज तय है, लेकिन हमारी सुबह की जो मुलाकात है ना, उसमें साथी है ना, एक ही जमात के नहीं, वो अलग अलग है। जैसे एक आप हो गए, दूसरे का एक साथी हो गए, फिर टोला होकर एक साथ जाएंगे। हल्का नंबर 3 का मैं एक नंबर का एक साथी, तो जहाँ तकाजा होता है ना, उसी उन्वान से मुलाकात करते हैं। अच्छा, सुबह की मुलाकात मस्जिद के तकाजे पर, और शाम की मुलाकात घर घर की मुलाकात, ये तकसीम किया है। अच्छा अच्छा। तो शाम की मुलाकात सुबह में आप कितना देते हैं? सुबह में 9 बजे 9 बजे, और शाम को मगरिब से इशा तक। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी जो 2.5 घंटे के एरिया आपको दिया है, उसमें से कभी आपने 3 दिन की जमात अपनी बनाई? हाँ, बनाई। उस एरिया में से बनाई? हाँ। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अल्लाह बहुत मुबारक फरमाए। आपकी मस्जिद में कितने साथी हैं जो जमात लेकर जा सकते हैं? हमारी मस्जिद में 10 साथी ऐसे हैं जो जमात लेके जा सकते हैं। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। तो उसमें से साल की कितनी जमात बनती है आपके वहाँ से? साल की 4 जमातें बन जाती हैं, चीज़ें हाँ, 5 भी बन जाती हैं कभी। 4 या 5 बन जाते हैं। माशाल्लाह, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात। तो ये जो दूसरे 5 रह जाते हैं, उनका क्या होता है? आपके पास 10 आदमी वो हैं जो जमात लेकर जा सकते हैं, उनमें 5 के साथ तो जमात बनती है, दूसरे 5 का क्या होता है? जैसे मेरी जमा की तो मेरे साथ एक जो जमात से जाने वाला है ना, वो भी जुड़ जाता है। अच्छा, हाँ। आप उनको जोड़ लेते हो? नहीं, जोड़ते तो नहीं है, फिर? लेकिन क्या है कि तरतीब होती है, जैसे निकलने का वक्त होता है, तो इसी उम्र से 2-2 साथ में चले जाते हैं। आप जैसे अगर तो चले जाते सामान में चले नहीं, तो एक साथ दो जमातों की एक साथ तश्कील नहीं होती? तस्कील तो होती है, 2 जमात के एलान करते हैं। फिर पहले से ही ध्यान होता है कि इनके साथ जाना है, तो एक में कमजोरी हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा। कभी 2 जमात भी बन जाती है, ऐसा भी हुआ। अच्छा जैसे रमजान साहब 2 जमात भी हो जाती है, तो दोनों अलग लेके जाते हैं। अच्छा, मोहल्ले में कोई बीमार वगैरह हो जाए तो उनकी आदत में भी आप जाते होंगे? तो जाते हैं माशाल्लाह। जनाजा हो जाए उसमें भी जाते होंगे? वो भी पहुंच जाते हैं। और कोई साथी जमातों में गए हैं, उनके घर की खबरगिरी भी आप लेते होंगे? वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। अल्लाह के ज़खर दे। सारी जमातें इस तरह से मुलाकातें पूरी कर लेती हैं? नहीं, कमी वैसी रहती हैं, ताकि हमारी 6 जोड़ियाँ बनी हैं, इसमें 4 तो बराबर चलती है। अच्छा, एक तो आगे से रहती है। अच्छा अच्छा। ये जो 10 मकान आपके गली में गैर मानूस आप कह रहे हैं, वो गैर मानूस मकान, उनके वहाँ गमी खुशी है तो आप लोग जाते हैं? आ जाते हैं। गमी खुशी में तो वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं? हाँ, वो तो पैसे तो दावत देते हैं, बैठते हैं, चाय पानी होता है। वाह वाह। तो फिर गैर मानूस क्या रह गया? वो बात लेके जाते हैं, तो ये बात नहीं, ये बात नहीं, आप जैसे गश्त में भी जाते हैं, हम बुलाते भी हैं। वो बात भी सुनते हैं? नहीं, वो बात नहीं सुनते? अच्छा, मतलब तबलीग के उन्वान पर बात मत करो, बाकी जो बात करनी वो करो, यूँ? जैसे मौका होता है दावत भी देते हैं, लेकिन अच्छा, आपके गांव में आप कितनी बिरादरियां रहती है? बिरादरियाँ तो 6-7 बिरादरी। 6-7 बिरादरी। वो सब मुतवज्जे है या चंद बिरादरी? चंद बिरादरी। चंद बिरादरी मुतवज्जे। दूसरी बिरादरी के पास जाने में कमी है या फिर उनके मुतवज्जे होने में कमी है? नहीं, मुतवज्जे होने में भी कमी है। आप उनके पास जाते हो? हाँ, हम तो जाते हैं। हमारी जो दूसरे गज की तरतीब है ना, बराबर मिली जुली हुई है उनसे। अच्छा। आसपास में, और वहीं गश्त करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा गश्त अल्हम्दुलिल्लाह होता है जम के, मगरिब से शाम,
6 जगह होता है हमारी बस्ती में। दूसरा गश्त, हाँ, तो एक एक गश्त में कितने लोग जाते हैं फिर? हमारी तरतीब बनी है 6 7 8 साथी। एक थिएटर। हाँ, माशाल्लाह। तो आपने दूसरे गश्त के बाद छेड़ दिया, तो उसी को अपने आगे भी पूछ लो। तो आप जब दूसरे गश्त में 5-6 साथी 7 साथी जाते हो, तो कितनी जगह, कितनी देर, कितने वक्त के लिए एक जगह पर आप गश्त करते हो? वैसे मगरिब से इशा देते हैं और नहीं, गश्त में जो जाते हो मगरिब से इशा हाँ, गश्त कर लेते हो, हाँ, और गश्त के बाद इशा बाद बात कर लेते हो। इशा बात कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो बस्ती आपने वो छांटी होगी जो बंजर होगी, नहीं होगी, ऐसी छांटी है, या फिर छाटी वो ऐसी बस्ती होगी कि जहाँ कुछ काम नहीं होता, ऐसी बस्ती, ऐसे ऐसे मोहल्ले लिए जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे गांव के ही ऐसे एरिया को हमने मुंतखब किया है, 6 एरिया कि जहाँ कोई काम की शक्ल नहीं है, ऐसा ही आप कह रहे हैं? काम की शक्ल तो जो हमारी बंजर बस्ती है ना, तो 1-2 जगह है, 2 जगह वहाँ नहीं जा, बाकी तो जा सकते हैं। अच्छा, 2 ही जगह ऐसी है। तो आप ये जो दूसरा गश्त करते हो वो कौन सा एरिया होते हैं? वो हमारा जो सेंटर एरिया है ना, वहाँ मस्जिद वगैरह नहीं है? ना, मस्जिद नहीं है, है लेकिन दूर है। दूर। अच्छा, वो एरिया गैर मानूस मोहल्ला है या मानूस मोहल्ला है? नहीं गया मान। गैर मानूस मोहल्ला। फिर वहाँ आप कैसे दूसरा गश्त करते हो? ऐसा दूसरा अगर वहाँ हम बिछोना है ना, हमारा मीडिया वो बिछा देते हो? बिछा देते हैं। हाँ। फिर तो वहाँ 6 7 8 साथी हो जाते हैं, तो हम तय कर लेते हैं फजाइल गश्त, हाँ। फिर जमात बनाते हैं। कभी साथी ज़्यादा हो जाते 2 बना लेते, 3 4 तो काम ज़्यादा हो जाता है, कभी एक ही बनाते हैं, तो हम नगद ले आते हैं। नकद लाते हैं। फिर नमाज कहाँ पढ़ते हो ईशा की? दरमियानी बात वही होती है, ईशा की नमाज अगर बराबर है कि नहीं, अच्छी जगह है तो पढ़ लेते हैं वहाँ। फिर ईशा बाद फिर करते हो? नहीं, ईशा बाद फिर बात नहीं होती, फिर वही नकद लाकर उसी वक्त बात कर निपटा लेते लेते हैं? हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह से एक जगह पर आप कितने वक्त तक के लिए गश्त करते हो? मुस्तकिल अभी तो 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 ज़्यादा हो महीने गया, ज़्यादा हो गया। फिर भी? काबू में नहीं आता, ताकि साथियों की तश्कील भी करते हैं, निकलने की बात भी होती है, लेकिन निकलना अभी बहुत कम हो रहा है। तो तसलसल से फिर कितना, कब तक ऊपर मेहनत लगातार करते रहते हो? लगातार तो 6 महीने, साल, 2 साल, 12 महीने भी 12 महीने तक? कोई ऐसी बस्ती है ये वो 6 जगहों पर के ये गश्त वालों के जरिए से वहाँ कोई अमल शुरू हुए हों? पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन माशाल्लाह गश्त की तसलसल से मेहनत हुई तो वहाँ कुछ माहौल बदला हो, कुछ अफराद वहाँ से अल्लाह के रास्ते में गए हों, या किसी मकान में कोई अमल शुरू हो चुका हो, वैसा हुआ कुछ इन 6 जगहों में से कहीं? वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह गश्त की बरकत से वहाँ से हमको साथी मिले। साथी जगहों पर से मिले? 3-4 जगह। माशाल्लाह। आप मैं भी वहाँ, इज्तिमा में आया हूँ। माशाल्लाह, बड़ी बात है, बहुत बड़ी काम बात बहुत करते हैं। बहुत बड़ी बात है। आप वहाँ गश्त के अलावा हफ्ते भर में भी कोई मेहनत करते हो वहाँ हाँ, उस जाते एरिया हैं। में? क्या मेहनत करते हो? ताकि जैसे मेरा हल्का है वो, इसमें हमने 2 जमातें बनाई। एक जमात है ना, वो जो हमारी मानू जगह है, एक जमात हमारी मुस्तकिल हो जाए। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। तो रोजाना आपके उस जी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही। भाई जरा आप माइक के सामने रहकर बोलेंगे, ठीक है? आप थोड़े से कान खड़े कर दें, है ना? आदमी सोते हैं तो पहले कान सोते हैं, और उठता है तो पहले कान उठते हैं। आवाज हुई, कान में आवाज आई, फिर आंख खुलती है। सोता है तो पहले, जब तक आवाज रहती है नींद नहीं होती है, तो पहले कान सोते हैं। ऐसे गफलत होती है, पहले कान की गफलत होती है, तो कान खड़े करने पड़ते हैं ना। तो मैं ऐसे कर रहा था कि वो 6 की 6 बस्तियों में तसलसल से सारे हजरत इसी तरह जोड़ियां बनाकर बेचते हैं, या आपके खरी जोड़ी इस तरह बेचती है? नहीं, सारी जोड़ियाँ जोड़ियां जाती हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, अल्लाह बहुत मुबारक से दे। मिला। तो आपका तो इतना अच्छी फिजा बन गई कि ये गैर मानूस जो आप कह रहे हैं, वहाँ से आपको अफराद भी मिलने लगे, वो दूसरी बरातियों में लोग भी आने लगे, तो फिर अब इसको गैर मानूस हम कहेंगे क्या रहे आपकी? नहीं, वैसे इतने गैर मानूस नहीं रहे पहले के मुकाबले में। अच्छा, अब तो अच्छा है। आपकी बात सुनते हैं, बिठाते हैं, इकराम करते तो हैं। निकलने बस बात लगे। इतनी है कि तबलीग का नाम मत इस्तेमाल करो, बाकी सब कुछ करो। ये हुआ ना? अच्छी बात है, अल्लाह की दुआ है। माशाल्लाह, तबीयत खुश हो गई, बहुत अच्छी माशाल्लाह भाई ने कारगुजारी सुनाई। हमारी औलाद भी यही फरमाते हैं कि हमारी मस्जिद में
बस कोशिश इसकी करनी है कि इनके वहाँ एक अच्छा अमला वक्त लगाया हुआ है। कोशिश करनी है कि हमारी मस्जिद के फिक्रों में हमारी मस्जिद का हर मुसल्ली शरीक, इसकी कोशिश करनी है। और ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। मैं इनसे पूछना भूल गया कि आपका इतना अमला है, बाकी अमले की आप क्या फिक्र करते हो, मैं पूछना भूल गया। बाकी कम से कम वक्त लगाया हुआ अमला तो रोज़ाना हमारी फिक्रों में किस तरह शरीक हो उसको ज़रूर हम सोचें। क्योंकि आदमी, हम अपने मोहल्ले में जो चीज़ चलाना चाहते हैं उसमें, उस फिक्र में अगर हमारे मस्जिद का अमला हमारे साथ शरीक फिक्र है तो हमारे अमल में भी शरीक हो जाएगा। हम एक बात चलाना चाहते हैं लेकिन मोहल्ले वाले उस फिक्र में हमारे शरीक नहीं हैं, तो फिर मोहल्ले से हमें ताउन नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप? एक घर में कोई आदमी काम करना चाहता है, उस घर जो होता है वो तीन लोगों से बना हुआ एक घर होता है, माँ, बाप और औलाद। सही गलत? अरे बोलो तो सही भाई। कोई बात घर में करनी है तो अगर मियाँ बीवी में भेदभाव हो जाए तो वो काम घर में आसानी से हो जाएगा कि दोनों का एक फिक्र होना जरूरी। माँ बाप एक हो गए, बच्चों का विरोध हो गया, अरे बोलो हो जाएगा काम? हो सकता है होने पर पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ अगोड़े रहेगी, गुचवण रहेगी। जब तक घर के सारे अफराद एक फिक्र नहीं हो जाते तब तक घर में कोई चीज नहीं होती। तो जो चीज हम अपने मोहल्ले में चलाना चाहते हैं, अगर उस मोहल्ले के अफराद हमारी फिक्र में शरीक नहीं हुए तो वो चीज फिर मोहल्ले में कैसे चल जाएगी? इसलिए आप देखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में जो फिक्र हुजूर की थी उस फिक्र में मदीने के हर फर्द को शरीक कर दिया। एक एक आदमी को, करीब का रहने वाला, दूर का रहने वाला, सबको शरीक किया। और मर्दों के जरिए से उनकी मस्तूरात को शरीक किया। उस फिक्र में इतनी मस्तूरात शरीक हो गई, इतनी शरीक हो गई कि उसमें उनकी तरफ से इतना बड़ा ताउन मिला। मेहमान को घर में लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हुजूर के मेहमान को लाया हूँ, कोई चीज़ बचा कर ना रखना। तो घर वाली क्या कहने लगी? घर वाली कहने लगी कि जी घर में बच्चों के लिए बस थोड़ा सा है, बाकी कुछ नहीं है। आदमी अपनी भूख बर्दाश्त कर लेता है, बच्चों की नहीं बर्दाश्त कर पाता। बच्चों की, आप उस औरत का ताउन कितना मिला, बच्चों को भूखे सुला दिया। तो ये बड़ी बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी फिक्र में मदीने के एक एक घर को शरीक किया था, बच्चे बच्चे को शरीक किया था। इसलिए आप देखें, जब मैदान में जाना हुआ, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, छोटे बच्चे जाते हैं। हमारे मैदान में बहुत सारे बच्चे आए हैं लेकिन वो खेल कूद करते हैं और वहाँ छोटे छोटे बच्चे उस फिक्र में शरीक है। हजरत अकवा का वाक़या आपने पढ़ा है फ़ज़ाइल अमाल में जी? वो कितने साल के थे? 75 80 कितने साल के थे? अरे बोलो, 12 साल के सलमा इब्न अकवा। आपने मुआज़ और मुआवज़ का वाक़या पढ़ा है? वो कितने साल के थे? वो भी छोटे छोटे बच्चे और पैरों पर खड़े हो रहे हैं। ये कैसे हो जाते होंगे? तो उनको उस फिक्र में शरीक किया गया। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अफराद जहां गए, उन्होंने उस इलाके वालों को भी ऐसे ही शरीक किया। जब मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्के से मदीना गए थे तो मदीना मुनव्वरा के एक आदमी हैं, पूरे मदीने वालों को मुतफक्किर किया। तो जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके मक्के से मदीना गए तो सब इस्तिक़बाल में आए, तो वहाँ के बच्चे भी, अरे बोलो तो खरे, इस्तिक़बाल में आए। और उन्होंने कसीदा पढ़ा था, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा। याद है आप लोगों को? ये छोटे छोटे बच्चों को कसीदा किसने सिखा दिया? कि वो मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फिक्रों में शरीक हो गए। उस फिक्र के में शरीक होने ने उनको बताया हुजूर कितनी शान वाले हैं। तो हमारी मस्जिद में हमारा ये हदफ हो कि हमारी मस्जिद के सारे मुसल्ली हमारी फिक्रों में शरीक हो। अब वो हम सब चाहते हैं भाई हो जाए, कोई ऐसा है जो नहीं चाहता, लेकिन हो नहीं पाता। हम ये कहते हैं भाई हम तो चाहते हैं मगर लोग आते नहीं। तो हम तो लोगों के लिए कहेंगे वो आते नहीं, हमसे ये पूछा जाएगा कि आप लाते कैसे हैं? हम उनको अपनी फिक्रों में शरीक कैसे करते हैं? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम जब मुलाकातों में जाएं तो जैसे सारी चीज़ों की बात करें, मस्जिद के मशवरे की भी उनसे बात करें। मस्जिद में मशवरे में शरीक होने की और सारे अमाल में शरीक होने की। अब बात की, अब मान लो मैंने इनकी मुलाकात की, आज इन्होंने नियत की, अब फजर की नमाज में वो आए हुए हैं,
फजर की नमाज के बाद मैंने सलाम फेर दी। अब वो मैंने देखा कि वो साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने कल नियत की थी मशवरे में बैठने की। सलाम फेरने के बाद मैंने प्यार से उनके कंधे पर हाथ रख दिया। जी हाजी साहब खैरियत है, तबीयत ठीक है, अल्लाह को खुश रखे, सलामत रखे, कबूल फरमाए। माशाल्लाह कल हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे, आपने तय किया था बैठने का, देखो अभी मशवरे का अमल हो रहा है, तशरीफ ले आए। अब उन्होंने कल वादा किया था, मैंने रोकड़ी तश्कील कर ली। अगर मस्जिद और जमात में 30 साथी बैठते हैं और 30 के 30 जैसे इन्होंने सुनाया कारदारी, हर जमात में हमारे 5-5 है और सारे ही मुलाकात में जाते हैं। अगर सारे रोजाना इस तरह मुलाकात में जाएं और रोजाना उस घर वाले की इस तरह तो बात करें, और जितने तैयार हो रहे हैं अगर सारे का सारे रोजाना उनको शरीक करने की तश्कील थोड़ी सी कंधे पर हाथ रख दें, तो सच बताओ मजमा बढ़ेगा या जितना है इतना ही रहेगा? जरा जोर से बोलो। हम ये करते हैं? अरे बोलो हम करते हैं, तो फिर लोग कैसे शरीक हो जाएंगे? काश तय कर लो कि इंशाल्लाह आज से सबको शरीक करने के लिए हम तदबीर करेंगे। करोगे? तो इस तरह एक तो सबसे पहली कोशिश। दूसरा, भाई ने माशाल्लाह अच्छी बात सुनाई कि हमारी जमातें मुलाकातों में जो जा रही है उसमें हम सारे साथियों को इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह इन्होंने 30 के 30 जो बैठने वाले हैं उनके ज़िम्मे काम दे दिया। हम इसकी कोशिश करें कि हमारे पास मशवरे में जितने बैठे हैं उनको किसी न किसी जमात में जोड़ दें, अधर लटकता उनको न रहने दें। भाई मान लो किस मोहल्ले का आदमी आया है, उस मोहल्ले की जमात काम कर रहे हैं, वो मोहल्ले की जमात उनको अपने साथ मेहनत में शरीक कर लें। ये मोहल्ले का आया उसको अपनी मेहनत में शरीक कर लें, ये मोहल्ले का आया उसको अपनी मेहनत में शरीक कर लें, तो वो आया भी और काम में भी पड़ जाएगा। और अगर हमने उसको काम उसके जिम्मे नहीं किया, उसको शरीक नहीं किया, तो 1-2-4 दिन बैठेगा, फिर उसके बाद उसके अंदर उकताहट आ जाएगी, और उकताहट आ गई तो फिर वो आदमी खुद ही चला जाएगा। हम उनको अपने साथ शरीक कर लें फिक्रों में। आदमी बाज लोग जब देखते हैं कि मुझे ये फायदा हो रहा है, मेरे जरिए से हो रहा है, तो उसके अंदर आजमत बढ़ जाती है, आजमत बढ़ जाती है। तो हम आने वालों के इस्तेमाल की शक्ल सोचें, और इस इस्तेमाल की शक्ल में हमारे पास कोई नई एरिया तो है नहीं, तो जो जिस मोहल्ले का है उस मोहल्ले में, अब जैसे भाई ने सुना है कि हमारे ज़िम्मे 60 मकान है, 60 मकान और 4-5 आदमी होते हैं, भाई 6ठा आदमी आ गया तो उसको शरीक कर लो, आदमी बढ़ गए तो उसकी 2 जमात बना दो, 6 की 3-3 की 2 जमातें बन गई, 60 मकान है, उसको 30-30 मकान में तकसीम कर लो, तो काम और पायदार और मजबूत हो जाएगा और साथियों का इस्तेमाल भी होगा। इसलिए हम इसकी कोशिश करें। अब रही बात, भाई ने जैसे सुनाया कि कुछ जमातों की कारदारी में कमजोरी होती है, ये हर जगह ऐसा होता है। हम अपनी जात से तो इसकी कोशिश करें कि हम कमजोरी ना करें, हम अपनी जात से तो इसकी कोशिश करें, इस ध्यान के साथ कि मैं 24 घंटे में अल्लाह रसूल की बात नहीं बोलूंगा, अल्लाह के बंदों के पास नहीं जाऊंगा, तो मेरी क्या कैफियत रहेगी। हम अपनी जरूरत की चीज समझकर हम तो कमजोरी ना करें। बाकी रही दूसरी बात दूसरों के लिए, तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अपने आप को पाबंद बनाओ, दूसरों को तरगीब दो, ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सक व हर्रिदिल मोमिनीन। तो हमारा ये मजमुआ अगर ये अपनी जात से मजबूत है तो इनका वजूद इंशाल्लाह जो कमजोर लोग हैं उनको चलाने का जरिया बनता है। अक्सर आप यहाँ खेती के लोग अच्छे खेती से वाकिफ लोग हैं, अपने किसानों को देखा होगा कि जब हल चलाने के लिए कोई बैल कमजोर पड़ता है तो उसको कौन से बैल के साथ जोड़ देते हैं? अरे बोलो भाई, मजबूत के साथ। वो मजबूत हल भी चलाता है और उस कमजोर को भी लेकर चलता है। बोलो ऐसा होता है नहीं होता? ऐसे मोहल्ले में अगर कोई साथी कमजोर पड़े उनको मजबूत के साथ जोड़ दिया, थोड़े दिनों में इंशाल्लाह वो मजबूत हो जाएंगे। इसकी हम कोशिश करें कि हमारे साथियों का ये इस्तेमाल। और भाई ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई कि हमारे वो बड़े मशवरे के बाद हम फौरन मोहल्ले वाइज जमातें बैठ जाती है। ये बहुत ज़रूरी है कि हर मस्जिद में मस्जिद और जमात के मशवरे के बाद मोहल्ले वाइज जो जमातें बनी वो बैठें 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, और बैठ कर ये सोचें कि आज हमें किन से मिलना है, आज कौन से मकान की बारी है, वो किस वक्त मिलेंगे, उसका मशवरा करना। भाई इस पूरे जिले के सारी मस्जिदें इस तरह करती है? अरे भाई सारी मस्जिदें इस तरह बैठती है? कौन कौन मस्जिद बैठती है जरा हाथ उठाओ। अच्छा माशाल्लाह सब मस्जिदें बैठती है, मोहल्ले वाइज जरूर बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल आपके भाई जिन मस्जिदों में कमजोरी है जिसके जरूर है। बाकी आगे की देखिए, आपने सुना भाई के जरिए से, भाई ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी न किसी दर्जे में महीने तक नहीं पहुंच जाते। हमारे बुजुर्ग थे मियां जी मेहरा रहमतुल्लाह अलैह, वो बात समझते थे कि मुलाकातों का ऐसा निजाम बनाओ कि हर 15 दिन में मुलाकात 100% पूरी हो जाए। कितने दिन में बोलो? जोर से जरा बोलो, आने वालों की नींद तो चली जाए।
कितने दिन में? और फरमाते थे भाई मुसलमान 15 दिन तक पता नहीं कहाँ कहाँ की क्या क्या बातें सुनता है। अब 15 दिन के बाद भी अगर हम उसको अल्लाह रसूल की बात नहीं सुनाएंगे बेचारे का क्या हाल बनेगा? तो हम कोशिश इसकी करें कि हर 15 दिन में हमारी 100% मुलाकात हो जाए, 100%। उसके लिए दो चीजें चाहिए, एक मुलाकात करने वाला अमला हो तो मुलाकातें होगी, और वो अमला वक्त दे तो मुलाकातें होगी। अमला है और मुलाकातें नहीं दे रहा है, या अमला ही नहीं है, तो अमला भी बनाना है और उस अमले को अमल वाला भी बनाना है। भाई ने अच्छी कारदारी सुनाई कि हम जिसके मुलाकात में जाते हैं अगर वो एक काम करता होता है बाकी के अमल की उसको तरगीब देते हैं, और अगर 2-3 करता होता है चौथा पांचवा छोटा है तो उसको फिक्र दिलाते हैं, तो उससे 5 काम वाले 5 काम वाले बन जाते हैं, 5 काम वाले। और जिस मकान में कुछ भी नहीं है उनको बुरी बात करते हैं। अक्सर हमारी मुलाकातों में एक ज़ौफ़ ये हो जाता है कि हम मुलाकात में जाते हैं तो हमारी मस्जिद में एक तकाजा होता है चिल्ले की जमात का, 4 महीने की जमात का, वो हम पर ऐसा सवार होता है जिसके पास हम मिलने जाते हैं तो उसको कहते हैं भाई खैरियत, तबीयत ठीक? भाई वो मस्जिद में 4 महीने की जमात बन रही है ना, उसमें आपके लिए भी सोचा है, क्या राय है? अरे बोलो अक्सर ऐसा हो जाता है नहीं हो जाता? अरे कुछ वहाँ तो करो। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह की बात हमारे बुजुर्ग सुनाते थे। हजरत ये फरमाते थे कि तश्कील तो 6 नंबर में कौन से नंबर पर है? अरे बोलो 6ठे नंबर पर है, तो हम उसको कौन से नंबर पर बोलेंगे? हम उसको कौन से नंबर पर बोलते हैं? पहले नंबर पर। उससे पहले के 5 हमारे छूट जाते हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे ऐसा ना करें, बल्कि पूरे दीन की उनसे बात करें, पूरे दीन की बात करें। पूरे दीन की जब उनसे बात की जाएगी फिर उस दीन की अज़मत उसके अंदर आएगी। और इस ज़माने में तो खासकर ईमान की कीमत समझाने की ज़रूरत है। हमारा मॉडर्न बच्चे जो है ना, वो जिस माहौल में रह रहे हैं उनको इस्लाम में भी शक होने लगते हैं, शुबहात होने लगते हैं। ईमान, इस्लाम, उसकी अज़मत नहीं जानते। अगर ईमान और इस्लाम की अज़मत ज़िंदगी में आ जाए तो आदमी गर्दन दे देता है, कभी दीन नहीं बेचेगा। और आदमी अगर ये नहीं होता तो एक मुसलमान है और इस्लाम पर शक करता है कि उसके अंदर ईमान समझाने की चीज़ है, ईमान वाले की कीमत समझाने की चीज़ है। ईमान क्या है वो समझाने की चीज़ है। अल्लाह के अहकामात कितनी बड़ी चीज़ है, वो नमाज कितनी बड़ी चीज़ है, जहल के साथ ज़िंदगी न गुजरे ये समझाने की चीज़ है। तो हम इसको हल्के से न लें, ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, इसलिए हम पूरी बात उनसे करें। और माशाल्लाह भाई ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई कि हम घर में बैठकर बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरे जिले की सारी मस्जिदें घर में बैठकर बात करने की कोशिश करती होगी। भाई सारे लोग ऐसा करते हैं? कौन कौन ऐसा करते हैं जरा हाथ उठाओ। माशाल्लाह, बाकी कुछ बाकी रह गए, वो भी नियत करो हम घर में बैठकर बात करने की कोशिश करें। क्यों? अगर आपने घर में बैठकर बात नहीं की, उस घर के उस आदमी से आपने खेत पर बात कर ली, दुकान पर बात कर ली, चौराहे पर कहीं बात कर ली, तो आपने उस एक आदमी से बात की, बराबर है कि नहीं? उस घर में उसके 4 बेटे हैं और कुल उस मकान के 10 मेंबर हैं। कितने मेंबर? अब आपने उस घर के एक आदमी से बात की तो अब उसके घर के कितने मेंबर छूट गए आपके हाथ से? अरे बोलो भाई, 9 मेंबर को आपने वो फिक्र नहीं दी जो आप मस्जिद से लेकर गए थे। अब आप उस घर से ये कहो कि भाई हम मस्जिद से जो फिक्र लेकर गए थे उसमें सबका सहकार मिले, तो आपको सबका सहकार मिलेगा? आपने बात कितने को सुनाई है और आप सहकार कितनों से चाहते हैं? 10 से। जब वो आपकी फिक्र में ही शरीक नहीं हुए तो उनसे सहकार कैसे मिलेगा? इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कोशिश करें कि घर में बैठकर बात करें। उसका फायदा क्या होता है पता है? जितने मर्द होंगे वो आपके सामने अगर बैठ जाएंगे, बच्चे जो होंगे वो आपसे, तो आपको सबसे बात करने का अच्छे से मौका मिल जाएगा। और हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कोशिश करो कि आवाज जरा बुलंद कर लो और 6 सिफात की बात। औरतों की आदत क्या होती है पता है? जब पराया कोई आदमी घर में आकर बात करता है तो उसकी आदत में है वो चुपके चुपके सुनती है कि कौन है, क्या बातें कर रहे हैं। बोलो ये आदत औरतों में है कि नहीं? वो चुपके चुपके सुनेगी। तो आप जरा जोर से बात करोगे तो आपकी इस फिक्र में औरतें भी शरीक हो जाएगी। और अगर उन औरतों को तुम्हारी आवाज नहीं पहुंची तो उनकी दूसरी आदत क्या पता है? अभी तो तुम बात करके घर में से निकले भी नहीं होंगे कि वो अपने मर्दों से क्या पूछेंगे? क्या पूछते हैं? कौन थे, क्यों आए थे? बोला सही बात गलत? अरे बोलो बात सही है गलत? औरतें पूछती है नहीं पूछती? किसी का फोन आता है पूछती है कौन है तू? देखो क्या लेना देना है। अगर उसको चैन नहीं पड़ेगा वो फौरन पूछेगा कौन था। बोलो सही कह रहा हूँ गलत? तो उसको इतनी बेचैनी होती है।
तो अगर वो पूछेंगे तो आप जितनों ने बात मर्दों को जितनों को आपने बात सुनाई वो सब कहेंगे मस्जिद वाले थे, ये कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, तो सब अपनी औरतों को अपनी फिक्रों में शरीक करेंगे। तो बोलो घर के जितने लोग हैं वो सब हमारी फिक्रों में शरीक हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? घर में बैठकर बात करने का ये नफा होता है। फिर हमको क्या लगता है बाज मर्तबा, यार हमारे घर में बिठाने का माहौल नहीं है। अच्छा भाई, माहौल आसमान से टपकेगा, खेत में उगेगा, तो क्या करना पड़ेगा? माहौल तो बनाना पड़ता है। हम उससे रजूआत तो करें, भाई हम मस्जिद से आए हैं, हम आपसे घर में बैठकर बात करना चाहते हैं। तो लोग कहने में हमें कुछ जाता है? अगर कोई उसको उधर होगा तो उधर बयान करेगा। हम अपने जहन से क्यों उधर सोचें कि वहाँ ऐसा होगा, वहाँ ऐसा होगा। बाज़ मरतबा कहते हैं उसके घर छोटा है, बहुत छोटा घर है। अच्छा, उस घर में कोई बेटे बेटी का रिश्ता लेकर आते हैं तो वो छोटे घर वाला उनको कहाँ बिठाता है? अरे बोलो, ऐसा कहता है मेरा घर बहुत छोटा इसलिए बाहर से खड़े खड़े बात करता हूं, तो वो उसके लिए गुंजाइश करता है। और हम अपने अकल से ये कहते हैं कि इस घर में बैठने की गुंजाइश नहीं है। तो शैतान ये चीजें समझाता है। हम कोशिश इसकी करें कि हमारे घरों में बैठकर बात करें, और दूसरी कोशिश करें कि 6 सिफात की बात करें, पूरी बात करें पूरे दीन की, उसमें बच्चों की दीनी तरबियत की बात करें। बच्चे कितनी बड़ी अल्लाह की अमानत है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, हर आदमी की औलाद या तो उसके लिए जन्नत है या जहन्नम है। उसकी औलाद की उसको फिक्र दिलानी होगी, अपने मातहतों का अल्लाह सवाल करेंगे, इससे फिक्र दिलानी होगी। और उसके साथ साथ फिर आगे पूरे दीन की बात, तश्कील की फिर बात कर लें। तो इस तरह से अगर बात हुई तो इंशाल्लाह थोड़े अरसे में सारी बातें उस घर में चल पड़ेगी। और कोशिश करें कि हर 15 दिन में ये पूरा हो जाए। और ये भाई अभी कह रहे थे कि कुछ मकान हमारे वो हैं जो गैर मानूस है, जो तबलीग के नाम पर बात नहीं सुनते। तो कोई बात नहीं, हम बगैर तबलीग के नाम के सुनाएंगे। हम कैसे सुनाएंगे? मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तशरीफ ले गए मेवात में, वो मस्जिद गैर मानूस थी। तो वहाँ मौलाना के चाहने वाले भी थे और दूसरे जिगर के लोग भी थे। तो जो चाहने वाले थे उन्होंने कहा मौलाना तशरीफ लाए हैं, इंशाल्लाह मौलाना बात करेंगे जुमा के बाद, ये ऐलान किया। खत मुफ्ती महमूद साहब, बड़े मुफ्ती साहब साथ में थे। दूसरे जो लोग थे उन्होंने कहा बिल्कुल भी बयान नहीं होगा। ऐसा नमाज से पहले हंगामा हो गया, एक कह रहा है होगा और एक कह रहा है नहीं होगा। अब दोनों में इसी तरह बात चली, होते होते नमाज का वक्त, अब तशरीफ लाए, नमाज की सुन्नतें बांध दी। इतने में जुमा का टाइम हो गया, जुमा खड़ी हो गई, जुमा की सलाम फेरी, फिर उसने खड़े होकर कहा मौलाना है बयान होगा। दूसरा खड़ा होकर कहने लगा जी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मजमा खड़ा हो गया, क्या होता है देखें तमाशा। मौलाना ने सलाम फेरी और मुफ्ती साहब का हाथ पकड़ा जाने के लिए कि चलो बाहर जाए। और निकलते निकलते कहा मुफ्ती साहब हम यहाँ कोई बयान करने आए हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा ना बिल्कुल भी बयान करने नहीं आए। तो फिर अगर ये बस्ती वाले इजाजत देते तो हम उनको ये कहते, ये कहते, ये कहते, ये कहते, 2-4 बात सुनाई। फिर कहा हजरत हम यहाँ पे बयान करने आए हैं। कहा जी ना बिल्कुल बयान करने नहीं आए। फिर मौलाना कहने लगे अगर ये रजा देते तो हम ये कहते, ये कहते, ये कहते, सारी बात सुना डाली। हाँ बात बयान तबलीग का नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी बात पहुंच गई। तो कोई जरूरी नहीं कि ये कहें भाई हम तबलीग वाले हैं। भाई बात कहनी है, कोई उन्वान बना दिया। उन्वान बनाते बनाते आपने जोनों की जमातों का सुना होगा, व्यापारी बनकर मोहल्ले में गए, फेरिये बनकर मोहल्ले में गए और वहां सर्वे करके आ गए। इसी को तो हिकमत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिकमत कहते हैं कि भाई उसको सीधी बात नहीं कर सकते, अब हिकमत से बात करनी पड़ेगी। लोग हिकमत के तकाजे में काम छोड़ देते हैं। भाई हमने हिकमत છે રહેવા દો ને, એ થતું નથી અને हिकमत થી કરવાનું છે। हिकमत करने के लिए, छोड़ने के लिए। अल्लाह कह रहे बुलाओ हिकमत से। ऐसा नहीं कि अभी हिकमत नहीं है तो मत बुलाओ, ये फरमाया बुलाओ हिकमत से। तो उसको कैसे करने का? यूं अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने आपको ऐसे वाक़यात मिलेंगे कि बात कुछ नहीं की लेकिन तरीका वो इख्तियार किया, उसका दिल जीत लिया। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बहन थी शीमा, रज़ाई बहन थी, बहुत जलाली थी, बहुत गुस्से। तो उसको मक्के के लोगों ने कहा, वो मुसलमान नहीं हुई थी, तो मक्के के लोगों ने उसको कहा तेरा वहाँ के मक्के के लोग बदर में जो कैद में गए थे उसके बाद उसको छुड़ाना था। तो सिफारिश के तौर पर कैदियों की बात करने के लिए लोगों ने कहा कि तुम्हारे भाई के पास तुमको जाना है। वो गई तो वो तुमाखे के साथ, पूरे वफ्त के साथ, काफिले के साथ जब मदीने की हदूद में पहुंची तो साहबा ने देखा कोई काफिला आया है, कौन होगा ये? तो देखा कि कोई औरतें हैं। तो कौन लोगों?
کہ جاؤ تمہارے نبی سے کہو تمہاری بہن آئی ہے. ارے بھائی ہمارے نبی کی کون سی بہن؟ تو کہ جاؤ تمہارے نبی سے کہو کہ فلاں نام کی خاتون ہے جو تمہاری بہن آئی ہے. بہت ایک دم تیور بگڑے ہوئے حضور سے جا کر فرمایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہاں وہ میری بہن ہے، رضائی بہن ہے. اور خود اپنی جگہ سے اٹھ کر آ گئے. وہ جانتے تھے کہ بہن کیسی ہے. تو اس کے استقبال میں حضور خود نکلے اور اس کا استقبال کیا اور اپنی مسجد میں لے گئے. وہ ایمان والی ہے غیر ایمان والی ہے؟ اس کو کہاں لے گئے اور اپنا رومال بچھایا. حضور اپنے رومال پر اس کو بٹھا رہے ہیں اور بٹھا کر تبلیغ کی کوئی بات نہیں کی. تبلیغ کی ایک بھی بات نہیں کی. خیریت ہے بہن، کیسی طبیعت ہے، مانوس کرنے کی باتیں ہو رہی ہے. وہ بہن فری بھی نہیں ہو رہی ہے، مانوس بھی نہیں ہو رہی ہے، بات سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہو رہی ہے. تو بچپن کی یادیں یاد دلا دی. وہ بہن یاد ہے تجھے ہم دونوں ساتھ میں بکریاں چرانے جاتے تھے، کبھی تو مجھے گھوڑا بناتی تھی، کبھی میں تجھے گھوڑا بناتا تھا. اور ایسی باتیں تاکہ وہ باتیں ذرا دل کھلے اس کا. ایک بار کہا بہن تو نے مجھے کاٹ لیا تھا، یوں کر کے آستین چڑھا کر دکھایا. وہ ساری باتیں کرتے رہے، اس کا دل پسیج گیا. کوئی تبلیغ کی بات نہیں. جب بات پوری ہو گئی، اکرام پورا ہوا تو اپنے گھرانوں سے کہا کہ میری بہن آئی ہے اس کا کچھ اکرام کرو. تو ایک گھر سے منگوایا، دوسرے گھر سے، جس کے پاس سے جو ہوتا ہے اس کا اکرام کیا. تو مدینے والوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنی بہن کا اکرام کرنا چاہتے ہیں، تو جتنوں سے ہو سکا سب نے اکرام کیا. تو اس بہن کا اتنا دل نرم ہوا کہ ابھی تو حضور نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، دل جیتنے کی بات. کون سی بات؟ ایسا دل جیتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے جب اٹھنے لگی تو کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام میں اب آپ کی بہن نہیں، پہلے آپ کی باندھی اور آپ کے غلام ہوں، آپ جو چاہے ایسا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. کہ کوئی تبلیغ کی بات نہیں ہے لیکن دل جیتنے کا طریقہ ہے، دل جیتنے کے طریقے. کل میں تخت پر بیٹھا تھا تو ایک صاحب سے میں نے کہا کہ ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ اصل میں دوسری برادری سے ہیں تو وہ گھلتے ملتے نہیں ہیں. میں بھی پوچھ رہا تھا ان سے کتنی برادریاں ہیں. ہم برادریاں نہیں ہیں، یہ ہماری اوڑکھان ہے خالی بس. اللہ کے وہاں کون عزت والا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. کالے کلوٹے حبشی، کالے کلوٹے ہیں، چپٹی ناک والے ہیں، وہ اللہ کے وہاں اس گورے چٹے سے افضل تھے جو مکے کا متولی ہے. ابو لہب مکے کا متولی ہے، گورا چٹا ہے اور ہٹا کٹا مشٹنڈا ہے، اور اللہ نے اپنے بیت اللہ کی خدمت کے لیے اس کو قبول کیا ہے. اور ایک سلگتا ہوا انگارہ ایسا خوبصورت لیکن اللہ کی نگاہ میں بے قیمت ہے. تو ہم کوئی کسی کو کسی عنوان سے نہ تولیں. کون اللہ کے وہاں کس کا کیسا ہے ہمیں نہیں پتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس لیے ہم کسی کو ہلکی نگاہ سے نہ دیکھیں، ہم ہر ایک کا دل جیتنے کی کوشش کریں. یہ جتنی ہم تقسیم ہے، یہ فلاں برادری، یہ فلاں برادری، یہ اللہ نے اوڑکھان کے لیے بنایا ہے، اوڑکھان اور پہچان کے لیے بنایا ہے. باقی ہم امت ہے، امت ہم سب ایک ہیں. ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمارا جنم ایک ماں باپ سے ہوا ہے. یہ تو ہم خاندانوں میں ہمارے باپ کی ایک پہچان کی وجہ سے ہم ہو گئے، ورنہ ہمارے ماں باپ ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے. ہم امت ہے، ہم نے ایک کلمہ پڑھا اور ہم اس بنیاد پر جڑیں گے. صحابہ اس بنیاد پر جڑے تھے. حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو کفار نے پکڑ لیا. ان کا بھائی کفر کی حالت میں تھے، ایمان والوں نے پکڑ لیا. تو مصعب ابن عمر نے دیکھا کہ میرے بھائی کو پکڑا گیا ہے. تو انصاری نے پکڑا تو کہا وہ میرے بھائی، پیارے انصاری بھائی، جس کو تو نے پکڑا ہے ذرا کس کے کس باندھنا، بڑا فدیہ ملے گا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے. یہ کلمے کے رشتے کو اجاگر کر دیا، ابھار دیا. ہم کلمے کے رشتے کو ابھاریں گے اور رشتے چھوٹے ہیں، کلمے کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد میں، بدر میں اپنے ابا کے 2 ٹکڑے کر دیے. لوگوں نے پوچھا کیا کیا؟ تم نے اپنے ابا کو مارا؟ کہا میرے ابا کی شکل میں میرے نبی کے دشمن کو میں نے مارا ہے. کہ ہمارے کلمے کے رشتے اوپر رہیں گے، سارے رشتے ہمارے چھوٹے ہیں. کلمے کا رشتہ سب سے بڑا ہے. عبد الرحمن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بدر کے بعد ابا ایمان لائے تو ابا سے کہنے لگے ابا جی بدر میں تم میرے سامنے آ گئے تھے، میں نے ابا سمجھ کر چھوڑ دیا. ابو بکر کہنے لگے بیٹا میرے سامنے تو آتا، بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا. ہم کلمے کے رشتے پر جڑے ہوئے ہیں. مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ہم نے اس رشتے کے علاوہ اور کوئی چیزوں کی بات کی تو ہم نے ٹوٹی ہوئی امت کو اور توڑ دیا، کٹی ہوئی امت کو اور کاٹ دیا. یہ فلاں برادری، یہ فلاں برادری. ہم کلمے والے ہیں، ہم والے ہیں. بحث مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہیں کہ مسلمان کا اکرام بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں کرنا ہے کہ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں. اس نسبت سے ہم
बहैसियत उसके मुसलमान होने के उसको उठाने वाले बन जाए। इसलिए जितने हमारे मोहल्ले में और बिरादरियों के लोग हैं उनकी गमी में शरीक हों, उनकी खुशियों में शरीक हों, उनके दिल जीतने की ऐसी हमारी लालच हो कि हम उनको ले लें, हम उनको उठाने की कोशिश करें। ऐसे हुजूर इस्लाम लोगों को ऐसा ले लेते थे कि एक बार आया हुआ दोबारा छोड़कर जाता नहीं था। हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, गुलाम। वो उनके वहां के नहीं है, वो उनके वहां से नहीं है, वो अजमी हैं और हुजूर अरबी हैं। वो तो बिकते 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 इनके वहां आए थे। अम्मी जान हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनको हदिये में दिया था। उनके अब्बा उनको ढूंढ रहे थे, पता चला कि वो हुजूर के पास है, वो अजमी हैं। उसको इतना लिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने घर में उनको रखा। जब उनके अब्बा फिदिये की रकम लेकर पहुंचे तो अब्बा जी ने हुजूर को फिदिये की रकम पेश की कि मेरा बेटा आपके पास है, आप दे दीजिए। हुजूर ने फरमाया अगर वो आपका बेटा है, मुझे कोई फिदिया नहीं चाहिए, आप उसको ले जाइए, आप उसको ले जाइए। तो अगर वो आना नहीं चाहेगा तो मैं नहीं भेजूंगा। तो वो कहने लगे कि मुझे मंजूर है। वो ये सोच रहे थे कि कहीं क्या ऐसा हो सकता है कि बेटा अपने बाप को छोड़कर पराये के पास रहने को पसंद करे, ऐसा कभी हो सकता है, और वहां गुलाम रहेगा, मेरे पास आजाद हो जाएगा। तो वो शर्त मंजूर कर ली। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ैद को बुलाया, कहा इनको जानते हो? कि जी अब्बा जी है। इनको जानते हो कि ये मेरे चचा हैं? कब बात करो। उन्होंने बात कर ली। उसके बाद कहा बेटे हम आपको लेने आए हैं, हम तो तेरी वजह से परेशान हो गए, ये फिदिये की रकम, लेकिन हुजूर ने कहा ऐसे ही तुझे आज़ाद कर दिया। जब पूरी बात कर ली तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़ैद मुझे भी जानते हो? बस इतना जुमला कहना था कि एकदम धड़ाम देकर हुजूर की गोद में गिर गए और फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। ये सगे बाप हैं, चचा हैं, यहाँ गुलाम है, वहाँ आजाद है, लेकिन एक बार हुजूर के पास आया हुआ, हुजूर को छोड़कर न जाए। ये अजमी है, हुजूर अरबी है, अपने खानदान की लड़की से निकाह करवाया उसका कि हम कलमे के निस्बत पर जुड़े, कलमे के निस्बत पर हमें दीन जमा करेगा और कोई नहीं जमा कर सकता। कल बहुत सारे देहातों के कर्जदारियों में वहाँ मकतब नहीं था, वो नहीं था। एक साहब आकर मुझे कहने लगे असल में वो फला बिरादरी है, उस वजह से वो ज़रा मुतवज्जे नहीं हो रहे। भाई हमें मुतवज्जे करने ही का तो काम है हमारा, हम बिरादरी नहीं देखेंगे, हम तो ये देखेंगे कलमे वाला है, बस खत्म बात हो गई। भाई किसके पेशानी पर लिखा है कि फला है फला है फला है, हम कलमे वाले हैं, सब है। तो हम इसकी फिक्र करें कि कोई घर हमारा ना छोटे, हम उनको बहैसियत मुसलमान होने के, ये ईमान वाला अगर बगैर मेहनत के चला गया उसका क्या हाल बनेगा। इसके लिए हमारा 2.5 घंटे की मेहनत, कोई घर ना छोटे, कोई फर्द ना छोटे, इसको ऐसा अपनाना, ऐसा अपनाना। हमने एक मस्जिद वालों को देखा, उनकी मस्जिद के अतराफ में एक बिल्डिंग है, वहाँ बाहर के लोग आकर फेरिए रहते हैं, फेरिए, यूपी के फेरिए अक्सर। तो वो मस्जिद में जितने फेरिए आते हैं वो गैर मानुस के 15 दिन के लिए, कोई महीने के लिए। तो मैंने उस मस्जिद वालों को ताज्जुब, तो मैंने वो थोड़े दिनों में इतने उनसे जुड़ जाए वो फेरिए कि वो वहाँ जुड़ भी जाए और 3-3 दिन भी लगाए। उस मस्जिद वालों का तरीक़ाकार मैंने ये देखा कि जब वो फेरिए आते हैं तो उस मस्जिद के साथ देखते हैं कि अच्छा ये नए चेहरे नजर है, कौन है। तो नमाज के बाद उनसे मिलते खैरियत है, कहाँ के हो, कैसी तबीयत, और शाम को खाने की दावत कर देते हैं कि आप हमारे वहाँ आए हो, आप हमारे भाई हो, तो साथ में खाना खाएंगे। तो उनको साथ में खिला देते हैं। फिर जुमा के दिन होता है, देखो आज जुमा है, तुम्हारी छुट्टी का दिन है, तो आज शाम को अपने साथ में खाएंगे। वो फेरिए हैं। अब हफ्ते में 1-2 मरतबा होगा, फिर उनको शर्म आती है, वो कहते हैं आपकी हमारे वहाँ दावत, वो वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह दोस्ती हो गई। अब वो यहाँ रहे और करीब नहीं होते होते मैंने उस मस्जिद वालों का अंदाजा ये किया कि जितने फेरिए वहाँ फेरी फिरने आते हैं, 15 दिन हो या महीना, एक भी नहीं बचता कि जिसके 3 दिन न लगे हो। वो मानूस करना पड़ता है। आप मुझसे प्यार की बात करोगे तो मैं आपसे प्यार की बात करूंगा, लेकिन आप ही मुझे प्यार नहीं दोगे तो मैं आपके पास आऊंगा। जब ये मोबाइल का जमाना नहीं था, हम देवबंद में पढ़ते थे, तो एक एसटीडी में बात करने जाते थे, पैसों से बात करने थे, तो वहां लिखा हुआ यह था कि प्यार से बात करो, तुम्हें प्यार फ्री में मिलेगा। तुम अबे तुबे से बात करोगे तो भी अबे तुबे से बात करेगा, और तुम प्यार से बात करोगे तो। इन बस्तियों वालों को, इन देहात वालों को प्यार देने की जरूरत है। ये नहीं देखना फला बिरादरी है, फला बिरादरी है, ये कलमे वाला है, और हो सकता है मुझसे ज्यादा अल्लाह के वहां ये इज्जत वाला हो, और अल्लाह की निगाह में मुझसे ज्यादा ये कीमत वाला हो। हम इनके इस शक्ल से ना सोचें कि ये किस हाल में जी रहा है, पता नहीं उसका हल कब अच्छा हो जाए और मेरा हल कब बुरा हो जाए। आज वहाँ वसीउल्लाह खान साहब की एक जगह बात पड़ी कि किसी को जिना में देखो तो भी उससे बदगुमान मत हो सकता है जिना करने के बाद वो तौबा कर ले,
اور ہم اس کے بدگمانی کر کے اپنا پاپ کا گھڑا شروع کر دیں اور وہ نیکیوں کا گھڑا شروع کر دیں. اس لیے بحیثیت امت کو جمع کرنا ہے. اس لیے سب طے کرو کہ اپنے 2.5 گھنٹے کا ایسا نظام بناؤ کہ ان کو اپناؤ. جہاں ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں وہاں کھل کر بات کرو, ورنہ مجھے اس کو دوست بنانا ہے. صحابہ کا ایک مجموعہ آپ کو ملے گا جن سے حضور نے بات کی نہیں, ان کی دوستی میں وہ مسلمان ہوئے. حضرت عثمان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں مجھے تھوڑی مسلمان ہونا تھا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی وجہ سے میں تو ہوا ہوں. دوستی لے آئے. آج دنیا میں دوستی میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں, ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں دوستی میں. کتنے لوگ دنیا میں دوستی میں دھرم چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ دوستی میں ہماری دوستی نہیں کریں گے. تو ہم دوستی کرنا سیکھیں, دل جیتنا سیکھیں. یہ ہمارے 2.5 گھنٹے کی محنت کا ہدف ہے. کرو گے انشاءاللہ. اسی طرح یہ دوسرے گشت کے بھائی نے بات سنائی, اسی طرح ماشاءاللہ بھائی نے بہت اچھی کاروباری سنائی, طبیعت خوش ہوئی. ایسے ایریے کو منتخب کرنا جو ایریا بنجر ہے, بنجر. دوسرے گشت کے ذریعے سے ہمیں وہ ایریوں کو کور کرنا ہے کہ جہاں پر کام کی کوئی شکل نہیں ہے. ایسی مسجدیں نہیں لینی ہیں کہ جہاں کام ہو رہا ہے, وہ نصرتی گشت ہو جائے گا. ہم اپنے 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے تو اپنے محلے کو کور کریں. بس ایک گزارش ان سے یہ تھی کہ جو آپ نے کہا کہ ہماری صبح کی جماعت تقاضوں پر جاتی ہے اور شام کی جماعت گھر گھر کی ملاقاتوں پر. تقاضوں پر الگ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. آپ اپنی ساری جماعتوں سے کہیں کہ آپ جو صبح کی ملاقاتوں میں تقاضوں پر جاتے ہو وہ بجائے تقاضوں کے اپنے گھر گھر کی ملاقاتوں میں جاؤ. اپنی گھر گھر کی ملاقاتوں میں جاؤ, اس کا 2 نفع ہوں گے. ایک تو آپ کے 100% ملاقاتوں کی جو وہ پوری ہوگی, پھر وہ تقاضا آپ اس گھر والوں سے مانگو جس گھر میں آپ ملاقاتوں میں جا رہے ہیں. بھائی آپ چلے کا تقاضا ہے اس گھر والوں سے مانگو, 4 مہینے کا تقاضا ہے اس گھر والوں سے مانگو, 3 دن کا تقاضا ہے آپ اس گھر والوں سے مانگو. پھر آپ کہو گے کہ صبح میں ایک ہی میں اکیلا اپنے محلے کا ہوتا ہوں, دوسرے اپنے محلے کے دوسرے افراد بناؤ, دوسرے افراد بناؤ. وہ محلے میں ہمیں ایسا سمجھتے ہیں کہ سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. نا, اکثر لوگ جاگتے ہوتے ہیں. یہ ہمارا غلط خیال ہے کہ لوگ سوئے ہوتے ہیں. اس لیے ہم 2 کام کرتے ہیں کہ صبح میں یا تو ملاقاتیں نہیں کرتے ہیں. صبح کا وقت ہم یہ نہیں کہتے صبح کی ہی ملاقاتیں ہونی چاہیے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملاقات ہونی چاہیے جس وقت میں محلے والے مل سکیں. ملاقات اس وقت ہونی چاہیے. لیکن صبح کے وقت میں اس لیے کہتے ہیں کہ اکثر صبح کے وقت میں لوگ مل جاتے ہیں اور صبح کے وقت میں ہم بھی فارغ ہوتے ہیں. ہاں, شام کو جیسے بھائی نے سنایا کہ 4 ہی دن ہو پاتے ہیں, 3 دن عملوں کی وجہ سے ہم کر ہی نہیں پاتے. صبح میں عام طور سے ہمارا وقت فارغ ہوتا ہے, محلے والے بھی مل جاتے ہیں, ہم بھی فارغ ہوتے ہیں, تو صبح کے وقت میں کام آسان ہو جاتا ہے. اور محلے میں لوگ جاگتے بھی ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں لوگ سوتے ہوتے ہیں, ورنہ اکثر جاگتے ہیں. آپ کو بتاؤں کتنے جاگتے ہیں, بتاؤں کتنے. بھائی اس مجمع میں فجر بعد جو نہیں سوتا وہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. نہیں سوتے وہ ہاتھ اٹھاؤ ذرا. سب دیکھو پیچھے دیکھو ذرا, جو فجر بعد نہیں سوتے. دیکھ لیا آپ نے, دیکھ لیا. ہم کیا سمجھتے ہیں لوگ فجر بعد, دیکھ لیا آپ نے, یہ سب جاگنے والے ہیں. ایسے بہت سارے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں سے گزارش ہے کہ تقاضوں کی الگ جماعت بنانے کے بجائے اپنے محلے کی ہی ملاقات کرو, اسی میں تقاضوں کے مطالبے کرو. اور ایک بات سنو, اور فجر کی ملاقاتوں کی اس لیے ترغیب دیتے ہیں کہ محلے والے بھی ملیں گے اور ہم اکیلے اپنا عملہ بناؤ جو آپ کے ساتھی انہیں میں سے دوسرا تیسرا چوتھا, تاکہ 100% اچھا مضبوط نظام بنے. کرو گے اس کے بعد. اور دوسرے گشت میں آپ نے جیسے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی محنت یہ کر رہے ہیں کہ اس ایسے ایریوں کو ہدف بنایا جو ایریا بنجر ہیں, جو ایریا بنجر ہیں. اور گشت کے علاوہ یہ جاتے ہیں, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو دوسرا گشت ہم کرتے ہیں نا, وہ گشت کے لیے نہیں کرتے. 2.5 گھنٹے سے جس طرح ہم اپنے محلے کو کور کرتے ہیں, ایسے دوسرے گشت کے ذریعے سے ہم سے اطراف کے جو محلے ہیں بنجر, ہم 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ان بنجر محلوں کو آباد کریں. اور بھائی سے میں نے ایک بات پوچھی, شاید آپ نے سنی ہو, کہ گشت کے علاوہ بھی آپ وہاں جاتے ہو. یہ بنیادی بات ہوتی ہے. خالی گشت میں جانے سے وہ محلے کھڑے نہیں ہوتے, بلکہ گشت کے علاوہ وہاں دوستی کرنے کے لیے جاؤ. پورے ہفتے میں ہمارا آنا جانا رہے. جب پورے ہفتے ہمارا آنا جانا ہوگا, وہ محلے والے ہم سے تھوڑے متوجہ ہو جائیں گے. پھر جس دن گشت ہوگا اس دن جائیں گے تو ہمیں اچھا سمرتھن ملے گا. ہم پورے ہفتے تو وہاں کچھ گئے نہیں اور اچانک گشت کے دن ٹپک پڑے تو بولو ہمیں تعاون ملے گا. لیکن پورے ہفتے ہم ان کی غنی میں گئے, خوشی میں گئے, خیر خیریت پوچھتے آتے جاتے رہے, تو اب اس میں جس دن گشت میں جائیں گے تو ان کے تعاون کی شکل اچھی بن جائے گی. بولو بنے گی نہیں بنے گی؟ تو ساری مسجدیں اس طرح کرتے ہیں یا صرف گشت کے دن جاتے ہیں؟ اگر جاتے ہیں تو بہت اچھا. باقی اگر اس میں کمزوری ہے تو آپ حضرات نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم اس کو اسی شکل پر لے جائیں گے. بس ایک بات تھوڑی سی فکر کی ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 1 سال تک اس جگہ پر گشت کر رہے ہیں. ہمارے حضرات کہتے ہیں 2-2.5 مہینے ایک جگہ کو محنت کا میدان بناؤ. اگر 2-2.5 مہینے میں آپ
एक अठवाडिया मुस्तकिल गए, फिर एक अठवाडिये के बाद उनको अपने वहाँ थोड़ा सा लाए, फिर दूसरे अठवाडिये। उम्मीद है कि वहाँ से पहले अठवाडिये में 2-3 आदमी आपको 3 दिन के मिलेंगे, दूसरे अठवाडिये में 2-4 मिलेंगे, तीसरे अठवाडिये में मिलेंगे। तो 8-10 अठवाडिये आप जाओगे ना, तो वहाँ इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह की रात से कुछ हमला ऐसा मिल जाएगा कि वो कुछ ना कुछ काम कर 3 दिन लगाने वाला होगा, कुछ आपके साथ चलने वाला हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो आप उसको दूसरे मोहल्ले वालों को दे दो। हो सकता है कि बाज़ मरतबा हमसे नहीं हुआ, वो दूसरे मोहल्ले वाले को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने एक जगह जमात दे दी, तो वहाँ 6 महीने तक हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु काम किया। तो जब वो काम नहीं हुआ तो हुजूर ने फरमाया कि अच्छा आप आ जाओ, अब फलां को भेजो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। जैसे हजरत अली गए, अल्लाह ने उनके हाथ से वो काम करवा दिया। तो बाज़ आदमी होते हैं ऐसे कि अल्लाह ने उनको ऐसा मलका दिया होता है, बाज़ों का रोना होता है, बाज़ों की करने के ऐसे तरीके होते हैं कि तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम कोशिश करें 2-3 महीने हमने गश्त किया, अगर वो चीज़ वजूद में आ गई बहुत अच्छा, वरना फिर उसको और मस्जिद के हवाले करो, हम दूसरा मोहल्ला ले लें। इसकी ज़रा कोशिश कर लिया करें, करोगे इंशाअल्लाह? चलो अल्लाह तौफीक। जी यहाँ जाओ। एक बात ये पूछनी थी कि हम छोड़ना चाहते हैं मोहल्ले को, लेकिन साथियों की नौयत ऐसी ही, एक साथी की नौयत हमारे पास है, हम छोड़ना चाहते तो हम छोड़ नहीं सकते। अच्छा, ताकि दूसरे साथी हम भेजे, हाँ उनको मानुस होते होते 15 दिन महीना हो जावे। हाँ अभी हम तस्कील के जोर पर चल रहे हैं, अभी तस्कील ही कर रहे हैं, खुसूसी मुलाकात के जरिए जो मंजर में जानते हैं। मैंने अभी आपको यही कहा कि वहाँ हमें तश्कील नहीं करनी है। मैंने कहा हमको पूरी बात करनी है, छिल्ले तश्कील करनी है। भाई वो तो हम तो देखेंगे कि एक हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि आप देखो सामने वाले को, आपको क्या महसूस हो रहा है, हम 4 महीने की बात रखें, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि वो इनकार करेगा तो उसको इनकार न करने दें। उसके इनकार करने से पहले चिल्ला मांग लो, और ऐसा लग रहा है चिल्ले के लिए भी आमदा नहीं होगा तो उसको इनकार न करवाओ, चिल्ले से उसको 3 दिन पर आ जाओ। समझ ना बात आप? तो फिर ये चीज़ आसान हो जाएगी। समझ ना बात आप? बहुत अच्छी बात। और कोई मस्जिद वाले आ जाए, आप तो शिव भाई साथ में आओ, माशाल्लाह। अरे कोई सफेद बालों काले वाले को खड़ा करो, नहीं सफेद बालों वाले को भाई आ जाओ। तो खड़ा रहना पड़ा तब देर तक। आपकी मस्जिद में दोनों तालीमों का क्या निज़ाम रहता है? तालीम होती हमारी मजलिस। भाई तशरीफ रखें, भाई बैठ जाए, ऐसा ना करें। देखो आप तो एक दिन यहाँ बैठे हो, ये हमारे साथ जमात है ना, वो 40 दिन ऐसे बैठती है। कितने दिन बैठेगी? ये सब शुगर वाले भी हैं, प्रेशर वाले भी हैं, डायबिटीज वाले भी हैं, वो सब्र करके बैठते हैं। आपको कितने दिन बैठना है? आज आपका इख्तिमा पूरा, इनका तभी शुरू हो रहा है। कितने दिन बैठना है? तो आप एक दिन साथ नहीं दोगे तो आप क्या कर लोगे? इंशाल्लाह बैठेंगे। भाई उठोगे तो नहीं? कौन कौन उठेगा? जरा हाथ उठाओ। अच्छी बात है भाई, आप बैठ जाओ वरना चले जाओ। आपको बैठना है बैठ जाओ, जाना है चले जाओ। जी ईशा की नमाज के बाद तालीम होती है हमारी, हाँ 10-15 मिनट तालीम होती है। अच्छा, कौन सी किताबों में से पढ़ते हो? हर हिस्से में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, 2-3 मिनट 2-3 मिनट निशान लगा कर पढ़ते हो? दोनों किताबों में से पढ़ते हो? नहीं, फज़ाइल अमल में से पढ़ते हैं। और सदक़ात में से? मगरिब बाद पढ़ते हैं। दो तुम तालीम जाते हो? 2 तालीम करते हो? नहीं, वो तालीम तो ईशा बाद ही होती है, हाँ। लेकिन मुलाकात में जाते हैं हाँ। उस वक्त उसमें से करते हैं। फज़ाइल सदक़ात में से? जी, थोड़ी सी तालीम होती उसमें है। से क्यों करते हो? नहीं, उस वक्त तालीम क्यों करते हो? अच्छा, जोड़ने के लिए तालीम करते हो? कितनी देर तालीम करते हो? बस 2-4 मिनट 2-4-5। मुलाकात की तालीम होती है। अच्छा अच्छा, तो गोया वो तालीम नहीं है, वो तो जोड़ने के लिए आप करते हो। तो जोड़ने के लिए आपको अल्लाह के नबी की बातें ही मिली, कि जोड़ने के लिए तालीम को वापरते हो। हाँ भाई, लोगों को जोड़ने के लिए तालीम को वापरते हो आप। चलो, और ईशा के बाद कितने लोग बैठते हैं आपकी नमाज में से? 40-50 आदमी बैठते हैं। 40-50। कितने मुसल्ली आपकी मस्जिद में? 100-100 ये इतने 40-50 कितने वक्त से बैठते हैं? कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ के हिसाब से खेती वाले में से होता है। ईशा के बाद खेती करने जाते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा, थके हुए आते हैं तो इस वजह से कभी आगे पीछे हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, और घरों में क्या हाल है तालीम का? कितने मकान है आपकी मस्जिद के अतराफ में? 300 मकान, 300। कितने मकानों में तालीम हो रही है? 30-25 मकानों में। आपके वहाँ
वक्त लगे हुए साथी कितने हैं? 150। 150। मतलब वो 150 भी नहीं कर रहे हैं वक्त लगाए हुए भी? 4 महीने वाले चलने वाले कितने हैं? 150। और मस्तूरात वक्त लगाई हुई? हाँ 50 है। तो वो भी नहीं कर रही है वक्त लगाई मस्तूरात? 20-25 मकानों में हो रही है तब। अच्छा, घरों में कितने तक तालीम हो रही है? अलग अलग होती है सबकी, किसी के 10 मिनट का, किसी के 15 मिनट तालीम होती है। बहुत अच्छा। ये कब से 25 मकानों में हो रही है? पहले कम घरों में होती थी, अब बड़ी बड़ी। अच्छा, आपके वहाँ इज्तिमाई तालीम के हल्के हैं? हाँ, आपके कुल मकान कितने? 300। इज्तिमाई तालीम के हल्के कितने हैं? 7। 7 इज्तिमाई तालीम के हल्के हैं। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। और कोई आपके मस्जिद के अतराफ में कोई ऐसा मोहल्ला छूटता है कि जहाँ मकानात हैं और तालीम का हल्का नहीं है? सारे मोहल्लों में है। माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छी बात। मस्तूरात के वक्त लगाने जमातें बनती है कुछ? जी, बनती? महीने में एक आध जमात 3 दिन की बनती है? कभी बन जाती है, कभी एक भी बन जाती है, कभी साथ में 1-2 हो जाती है, माशाल्लाह, कभी नहीं भी बनती है। बहुत अच्छी तशरीफ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कारदारी भाई ने सुनाई, अच्छी तालीम का अमल। बस इसकी कोशिश करें कि हमारी तालीम में हमारे मोहल्ले के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि जो ईमान वाले की ग़िज़ा है। ग़िज़ा जानते हो? ग़िज़ा और दवा दो में फ़र्क है। दवा ज़रूरत पर आदमी खाता है, दवा कब खाता है? और ग़िज़ा रोज़ खानी है। ईमान वाला अपने ईमान पर जो बाकी रहे, उसके लिए उसको ईमानी ज़िंदगी सुनानी पड़ेगी। ईमान वाला कैसा होता है? ये जो फ़ज़ाइल की किताबें हैं ना, वो अजीब व गरीब किताबें हैं। वो क्या किताबें हैं? वो मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शेख से लिखवाई है। उसमें क्या है? ये ज़िंदगी के 5 शोबे हैं: ईमानियात, इबादत, मामलात, माशरत और अखलाकियत। ये 5 शोबे हैं। इन 5 शोबों में ईमान वाला कैसे रहे, वो ज़िंदगी उसमें लिखी है। मौलाना ऐसा फरमा देते कि अगर हमारा काम चल पड़ा तो सबसे पहले लोगों में जो चीज़ जिंदा होगी वो होगी ईमानियत और इबादत। ईमानियत और फरमाया उससे लोग अपना दीन बनाएंगे, और मामलात और माशरत की खराबी से लोग अपना दीन बर्बाद कर देंगे। बहुत खतरनाक उससे बर्बादी होती है कि अगर आदमी कितना भी बड़ा बुजुर्ग है लेकिन पेट में हराम चला गया, तो चाहे कितना बड़ा बुजुर्ग हो, उसकी इबादत उसके सर के ऊपर नहीं जाएगी। काबा शरीफ में चला गया, बैतुल्लाह का पर्दा पकड़कर दुआ करेगा तो भी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि पेट में हराम जा रहा है। इस किताब में ये चीजें लिखी है, हलाल क्या है, हराम क्या है, हुकूक क्या है, अम्मी का हक क्या, अब्बा का हक क्या। कितना भी बड़ा बुजुर्ग बन जाए, अगर हुकूक की पाईमाली हुई तो ये हुकूक की पाईमाली बाज़ मरतबा उसको कलमे की मौत से भी महरूम कर देती है। हाँ, कलमे की मौत से। हुजूर के ज़माने में एक आदमी था, उसको लोग कलमा पढ़ा रहे हैं और कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम तशरीफ ले गए, क्या बात है? तो कहा कि उनसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। क्यों? तो उनकी अम्मी उनसे नाराज़ है। तो अम्मी से पूछा क्या वजह, आपको इनसे क्या नाराज़गी है? कहा मेरे बेटे की बुजुर्गी में मुझे कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा बुजुर्ग है। फिर फरमाया रात का तहज्जुद गुजार है और दिन का रोजा रखने वाला है। ओ रात को जागने वाला, दिन का रोजा रखने वाला, अब क्या रह गए बुजुर्गी में बाकी? फिर क्या मसला है? कि उसके जबान के सख्ते से मेरा दिल छोड़ गया है। इतने बड़ी बुजुर्गी में हक टूटा है तो कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। ये मजमे को हमें सुनाना पड़ेगा, हर घर में ये सुनाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं इस किताब में ये 5 चीजें हैं। ईमानियत है, इबादत के 5 अरकान, ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात और हज, 5 अरकान उसमें है। फिर मामलात है, हलाल क्या है, हराम क्या है। हाँ, हराम का निवाला पेट में चला गया तो क्या है, एक बालिश किसी की जमीन ले ली तो क्या है। फिर हुकूक है, अम्मी का क्या है, अब्बा के, और माशरत और अखलाकियात। एक एक मुसल्ली की ये जरूरत की चीज है। इसलिए हमारे बुजुर्ग 2 बातें फरमाते हैं। एक ये फरमाते हैं कोशिश करो कि 100% हमारे मुसल्ली ये बातें सुने। इसलिए मस्जिद की तालीम को ऐसे वक्त में करो जिस वक्त में ज्यादा से ज्यादा मुसल्ली शरीक हो सके। हमारे वहाँ ये जरूरी नहीं फजर, जोहर, असर, मगरिब, ज्यादा से ज्यादा मोहल्ले वाले जिस वक्त जमा हो सके उस वक्त तालीम कर लिए। और दूसरा कोशिश करें कि सबको तालीम में शरीक करो। उसके लिए क्या करेंगे? अपनी मुलाकातों में हम जब जाएं तालीम की अजमत लोगों में बयान करें, घर में भी तालीम जिंदा करने की अजमत बयान करें। अगर इस तरह से लोगों में बयान करेंगे ना तो इंशाल्लाह उस तालीम की अजमत बयान करने से लोग मस्जिद में भी बैठने वाले बनेंगे और उस घर में भी तालीम का अमल शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है?
تو اس سے گھروں کی تعلیم میں اضافہ ہوگا. مستورات میں بیان کرنے جائیں وہاں گھر کی تعلیم کو مستقل کھولیں, اس کے نفع بیان کریں. ہماری مستورات جب تعلیم کے حلقے میں جائیں ہم اپنے مستورات سے کہیں تم اپنے تعلیم کے حلقے میں آخر میں تعلیم کی ترغیب دو, مردوں کے ذریعے سے ترغیب, مستورات کے ذریعے سے ترغیب, ہم اپنے عمومی بیان میں مردوں کو ترغیب, مستورات میں ترغیب. تو اس طرح بار بار کی ترغیب انشاءاللہ ان میں اس عمل کے شوق کو پیدا کرے گی. ہر چیز کو شروع کرنے کی محنت کرنے کی چیز ہے. تو اس طرح ہم اپنی تعلیم کو شروع کریں. ایک ایک آدمی ہمارا تعلیم میں بیٹھے, اس کی ہم نماز پڑھ کر 50 مصلی ہوتے ہیں, جیسے 30 مسجد اور جماعت کے ساتھی اپنے دائیں بائیں دو ہیں, بھائی تشریف لیں, دیکھو مسجد میں تعلیم کا عمل ہو رہا ہے. اگر یہ 30 مسجد اور جماعت کے ساتھی دائیں بائیں پر ایک ایک پر ہاتھ رکھ دیں تو یہ 60 آدمیوں پر ہاتھ رکھا, تو اس میں بولو کچھ نہ کچھ بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے تو ہمارا اضافہ ہو جائے گا. تو ہم ایک تو تعلیم بہت ہلکے سے کرتے ہیں اور سب مصلی چلے جائیں تب ہم تعلیم شروع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھائی سنت پڑھ لی, سب کو پتہ ہے کب تعلیم ہوگی تو تعلیم شروع کر دیں. اب ہم آرام سے, بعض مسجدوں میں, مسجد اور جماعت میں بھی ایسا ہوتا ہے, سارے وظیفے اور سارا پڑھنے کے بعد بیٹھن, بھائی سلام پھیر دی, مسنون اذکار پڑھ لو, باقی وظیفے بعد میں پڑھنا. مسنون اذکار ہے وہ مسنون ہے, وہ پڑھنے ہی پڑیں گے, وہ پڑھنا ہی ہے. اس کے پڑھنے کے بعد فوراً بیٹھ جاؤ اور مشورہ شروع کر دو. ایسے تعلیم بھی فوراً شروع کر دو. اب ہم اتنی دیر ہم کرتے ہیں سارے مصلی چلے جائیں, اب پھر اس کے بعد ہم بیٹھیں گے. تو ہم ان عملوں کو اپنے وقت پر کرنے کی کوشش کریں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اور کوشش کریں, جیسے بھائی نے سنایا بہت اچھی کارگزاری کہ ہم ساری کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں. انہی کتابوں میں فضائل صدقات بھی ہے. ہم مجمع کو جوڑنے کے لیے کتاب نہیں پڑھیں گے, ہمارے وہاں ملاقاتوں میں جانے کے لیے تعلیم نہیں ہے. سمجھ نہیں پاتا کہ بھائی ملاقاتوں میں جانا ہے, سب جوڑ جائیں, اس کے لیے تھوڑی دیر تعلیم کریں, اس کے لیے تعلیم کو نہیں واپر رہیں گے. بھائی ہر جوڑی اپنی اپنی جوڑیاں بنی ہوئی اپنی اپنی ملاقاتوں میں جائے گی, اس میں جمع ہونا جوڑنے کی کوئی تقاضا ہی نہیں ہوتا. آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے جاؤ, یا اپنے ساتھیوں کو لے کر, یا اپنے ساتھیوں کو لے کر, اس میں سب کو جوڑنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس جوڑنے کے لیے ہم تعلیم کے عمل کو نہیں استعمال کریں گے. سمجھ نہ پاتا. ہمارے وہاں مسجد کی ایک تعلیم ہے. کون سی تعلیم؟ کہ کوئی ملک میں تعلیم آپ کر لیں. ہاں ائمہ ہوتے ہیں جو اپنے حساب سے اور کوئی تعلیم کرتے ہیں, وہ الگ بات ہے. باقی تبلیغی نہج میں اپنی ایک تعلیم ہے وہ کرنی ہے. باقی بعض ائمہ اپنے حساب سے کوئی کتاب پڑھے, وہ ایک ان کا اپنا عمل ہے, اس میں ہم شریک ہو جائیں گے اگر ہمارے پاس گنجائش ہے تو. لیکن ہمارے وہاں ایک تعلیم ہوتی ہے, اس کو ہم اچھی مضبوط کریں گے اس کی فکر, اور اس میں اپنے سارے مصلیوں کو بٹھانے کی اور اس فکر کو ایک ایک گھر میں بھرنے کی کوشش کریں. جب انشاءاللہ گھروں میں یہ تعلیم ہوگی نا, حضرت جی فرماتے تھے کہ تمہارے گھروں کے وہ سوراخ جن سوراخوں سے گھروں میں بے دینی داخل ہوتی ہے وہ سوراخ بند ہو جائیں گے. ہمارے گھر میں اگر تعلیم کا عمل شروع نہیں ہوا نا تو ایمان والے کے گھر میں 24 گھنٹے میں اللہ رسول کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. آئیے دیکھو مسجد اور جماعت کے اکثر ساتھی بیٹھے ہیں, آپ اپنا جائزہ لو. ہم اپنے گھروں میں اللہ رسول کی بات کرتے ہیں؟ جب ہم نہیں کرتے تو پبلک کیا کرتی ہوگی؟ تو کم سے کم تعلیم کے بہانے اللہ رسول کے تذکرے تو ہو جائے. اس کے لیے اپنے مذاکروں میں بھی اس کی ترغیب دیں اور اپنی ملاقاتوں میں بھی اس کی ترغیب دیں. کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ توفیق دے, قبول فرمائے. بھائی اور کوئی ساتھی آ جاؤ, آپ آ جاؤ, کوئی ایک ساتھی آ جاؤ, بھائی آ جاؤ. کیا ہے یہاں پر بزرگوں کا بھائی ابھی تو طے ہوا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے. او بزرگ, ابھی تو یہ طے ہوا تھا مشورے سے کہ ہم جائیں گے نہیں. مسلمان کی گردنوں کو پھلانگ کر آنا اور جانا دونوں منع ہے. اچھا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی مسجد میں 3 دن کی جماعت کیسے بنتی ہے, کتنی بنتی ہے, اور اس کے روانگی کارگزاری واپسی کیسے ہوتی ہے؟ ہماری مسجد میں مہینے کی 4 جماعت بنتی ہے. ماشاءاللہ. آپ کہاں کے ہو؟ بابر. ہاں بابر. بابر. ٹھیک, 4 جماعت بنتی ہے ماشاءاللہ. آپ کی مسجد میں کتنے مکان ہیں؟ ہمارے مسجد میں 70 مکان ہے مسجد کے اطراف. ماشاءاللہ 70 مکانوں میں 4 جماعت بنتی ہے. تو آپ کے وہاں 4 منٹ بھائی تشریف رکھیں, ایسا نہ کریں. آپ تو جوان لوگ ہیں, آپ بھی ایسا کرو گے؟ دیکھو تسبیح کا ایک دانہ ٹوٹتا ہے نا تو پوری تسبیح بکھر جاتی ہے, اور آپ تو اتنی جرأت سے جا رہے ہیں, ایسا نہ کریں. ہم آپ کو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو بیٹھنا ہے تو بیٹھیے, ورنہ آپ تشریف لے جائیں, لیکن موتیوں کو بکھیرے مت. جی تو آپ کے وہاں تو 70 مکانیں, مہینے کی 4 جماعتیں جاتی ہیں نا ماشاءاللہ. آپ کی مسجد میں وقت لگے ہوئے عملہ کتنا ہے؟ 4 مہینے والے 115 سال. 70 مکان میں جی ماشاءاللہ, بہت اچھا. کتنے بالغ مردوں کی تعداد ہے؟ 140-45. 145 میں سے 4 مہینے کتنوں کے لگے؟ 115.
115 के। और साल वाले मौलवी साहब भी होंगे? नहीं, साल वाले उनमें अच्छा, साल वाले वाला माइकला। और आपकी मस्जिद में जो जमात लेकर जा सके ऐसे साथी कितने हैं? 15 साथी। 15 साथी। और आपके पास इतने साथी हैं तो आपकी 4 ही जमात क्यों जा रही है? आपके 15 साथी है तो 15 के साथ जमात बने तो कितने महीने की जमात बनेगी? 7 बनेगी। दो जोड़े बना। अमीर एक और जो 110 है उसमें दूसरे मुआविन। ये अमीर में से मुआविन नहीं होता। ये 15 जो अमीर है वो तो अमीर, और जो 110 4 महीने वाले हैं उसमें से मुआविन। तो 15 जोड़ियां बने तो कितनी जमातें होगी? 15 जोड़ियां। बराबर है? अरे भाई बराबर है। तो आपकी इस्तेदाद 15 जमातों की है, तो आप 4 ही जमात क्यों बनाते हैं? मेहनत तो पूरे मजमे पर करते हैं, हाँ, लेकिन काबू में एक जमात आ जाती है हफ्ते में। काबू में 4 जमात आती है। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने जो तरतीब समझाई है कि आप हजरात जितने जमात लेकर जाने वाले साथी हों उनकी एक अमीर और मुआविन देकर जोड़ियां बनाओ और उनको कहो तुम मेहनत करके अपनी जमात बनाओ। ये तरतीब आपने बनाई है अपनी मस्जिद में? जी बनाए हुए हैं। बनाई है। तो आपने ऐसी कितनी जोड़ियां बनाई है? हमने 5-6 जोड़ियां बनाई हैं। तो 15 की आपने 5 बनाई, तो 5 जोड़ियां बनाओगे तो 15 जमातें बनेगी। आपने जोड़ियां ही 5 बनाई है और आप 15 की आशा करो तो हो जाएगा। वही हम 2-2 साथी 2-2 अमीर मिला के। तो आपने ऐसा आपको किसने सुनाया था 2-2 अमीर को मिलाना? आपने ऐसा नहीं सुना था कि एक अमीर और एक मुआविन? भाई आप लोगों ने क्या सुना? अमीर मुआविन सुना या 2 अमीरों को मिलाने का सुना? जरा जोर से बोलो। सबने तो अमीर मुआविन का सुना था, आपने 2 अमीरों का कहां से सुना था? अब तौबा कर लोगे इससे? चलो ठीक। तो आप क्या बनाओगे? 15 एक अमीर और एक मुआविन। उनके साथ जोड़ियां बनाओ। मुश्किल बात नहीं है। जिस अल्लाह ने 5 जमातें बनाई वो अल्लाह 15 भी बनाएगा। अब देखो माशाल्लाह 70 मकानों में 110 साथियों के 4 महीने लगे, तो जो अल्लाह 70 मकानों में 110 आदमी दे सकता है वो अल्लाह 15 जमात नहीं देगा। तो आप तो अल्लाह से अच्छा गुमान करके 15 जोड़ियां बनाएंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। हमारा तो हदफ ये कि हमारे मोहल्ले के सारे बालिग मर्दों का हर महीने से रोजा लगे, हर महीने के से रोजा लगे। लेकिन कम से कम तदबीर इतनों की तो करें जितना हमारे पास पूंजी है। 15 की पूंजी है, 15 की तदबीर तो करें। तो हमारे बुजुर्ग जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया का अमीर नबी बनाकर भेजा, लेकिन जहां तक खुद जा सकते थे गए, नहीं जा सकते थे वहां लोगों को भेजा। तो हम भी पूरे आलम के लिए, तो जितनी कैपिटल इतनी तदबीर करेंगे, बाकी की कोशिश करेंगे। समझ रहे बात आप? तो आप 15 जोड़ियां बनाइए, ठीक है? अच्छी बात। और कोशिश करें कि हमारे मोहल्ले के हर फर्द के से रोजे लगे। वो इस वजह से कि जब तक वक्त नहीं लगता तो जहन नहीं बदलता। वक्त नहीं लगता क्या नहीं बनता? जहन नहीं बदलता। वक्त लगाने में एक अजीब व गरीब तासीर है। टपोरी किस्म का आदमी है। कौन सा आदमी? अरे बोलो तो खरे। टपोरी। और सामान उठाकर मस्जिद में से निकलता है तो ऐसे अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डालते हैं कि कल उसको जो गाली देता था वो कहता है जमात में जब ओ भाई दुआ करना। अरे वही है टपोरी का जो गाली देता था वही है। लेकिन अल्लाह पाक एकदम दिल पलटा कर बोला ऐसा होता ही नहीं होता। अरे बोलो तो खरे हुआ करो कि पहले दिन अभी तो गया सामान उठाकर, अभी तो गया भी नहीं है, मस्जिद में बैठा है। और जिस टपोरी को कल लोग गाली दे रहे थे वो उसको क्या कहने आते हैं? अरे बोलो तो खरे, एकदम पलटा खाता है, अभी तो निकला भी नहीं है। अल्लाह दिल पलटा। और वो जो एक नमाज नहीं पढ़ता था वो वहां तहज्जुद भी पढ़ता है। एक चम्मच एकदम निकलने के ये नफे होते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कोशिश करो कि हमारे मोहल्ले के हर फर्द के से रोजा लगे। तो हम सब मस्जिद वाले इसको हदफ बनाएं। हमारा 1 जमात 2 जमात 3 जमात का मसला नहीं है। मोहल्ले के हर फर्द 27 दिन तक इस बिगड़े हुए माहौल में एक आदमी है। अब उस माहौल में से कम रोजे जब उसके लगेंगे, उसकी फिक्र, उसकी सोच, सब चीजों में इंशाल्लाह जिला पैदा हो जाएगा। इसलिए हर एक के लगवाने, लेकिन कम से कम इतनी जमातें हमारी मस्जिद की जरूर बने जितनी जमातों को लेकर जाने वाले हमारी मस्जिद में साथी। मसलन इनकी मस्जिद में 15 है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं अमीर और एक माविन 2 की जोड़ी बनाओ और पूरा महीना मेहनत करो। और हमारे बुजुर्ग थे सईद भाई भोपाली, वो तो यूं कहते थे कि अगर इस तरह जोड़ी बनने के बाद उसकी मस्जिद में उसका साथ देने वाला कोई भी ना हो, वो एकला का एकला हो, तो भी वो जमात बना सकता है। भाई कैसे बना सकता है? तो हजरत यूं कहते थे कि अच्छा बताओ। वो एक जोड़ी उसने नियत कर ली कि मुझे 27 दिन तक मेहनत करके 28वें दिन जमात में जाना है। अब वो एक जोड़ी ने रोज 2.5 कलाक लगाने शुरू किए
तो एक आदमी 2.5 कलाक में कितनी मुलाकात कर सकता है? कम से कम 4-5। अब वो 27 दिन तक कंटिन्यू एक जोड़ी मुलाकात करे तो एक दिन में 5, तो 27 दिन में कितनी? 135। एक जोड़ी है, मस्जिद में कोई साथ देने वाला नहीं, वो एक जोड़ी रोज कंटिन्यू 2.5 कलाक लगाए तो एक जोड़ी एक महीने में 27 दिनों में 135 मुलाकातें कर सकती है। तो वो जोड़ी तो 2 है, तो 135 में से क्या 8-10 आदमी उसको नहीं मिल जाएंगे? अल्लाह बोलो तो करे, तो उसकी जमात तैयार। तो हर जोड़ी अगर इस तरह मेहनत पर पड़ जाए तो उसकी जमात आराम। मौलाना सही साहब कहते थे एक जोड़ी है, कोई साथ देने वाला नहीं, वो भी अगर जमात बनाना चाहे तो बन जाए। बोलो आसान है क्या मुश्किल? इसलिए हम सब तय करें कि अपनी मस्जिदों में जितनी जोड़ियां हैं हर एक जोड़ी को तरतीब देनी है और हर जोड़ी को मेहनत की सही तदबीर समझानी है। करोगे इसकी फिक्र इंशाअल्लाह। और उनकी रवानगी वापसी कर्जदारी कितनी देर होती है? रवानगी की बात होती है आधा घंटा, वापसी की बात 15-20 मिनट कारगुजारी, थोड़ी देर बात हो जाती है वापसी की। अच्छा जी, तो आप इसको ऐसा क्यों कर रहे हो? इतना अच्छा जोरदार काम करते हो, रवानगी वापसी कर्जदारी थोड़ी सी कच्ची क्यों रखते हो? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि 3 दिन की जमात की रवानगी के बाद 4 महीने की जमात की तरह मजबूत बनाओ। क्यों पता है? अरे बोलो क्यों पता है? अक्सर हमारा नवा मजमा जो आता है वो 4 महीने के रास्ते से आता है या 3 दिन के रास्ते से? जरा जोर से बोलो। 3 दिन। अब 3 दिन के रास्ते से नवा मजमा आया और हमने उसको कोई रवानगी की बात नहीं समझाई, ठीक है? अब वो जमात में गया, अब उसको पता नहीं है जमात में क्या करना है। अब जमात में जो जो हरकतें होंगी वो ऐसा समझेगा ये भी जमात का भाग है। क्या है? 2 लड़े उसको भी कहेगा ये भी जमात में होता है, किसी ने को गाली दी का ये भी जमात में चलता है, तो उसी को वो जमात का काम समझेगा। और अगर हमने उसको रवानगी की बात मजबूत समझा कर भेजी तो फिर वो समझेगा कि क्या क्या करने का होता है, क्या क्या नहीं करने का होता है, और खुदा न करे उसके अलावा कुछ होगा तो समझेगा कि गलत हो रहा है, खरा करने का तो वही है जो रवानगी की बात में कहा था। तो उसको खरी खरी बात समझ में आएगी और वो खरे काम करने वाला बनेगा। और अगर हमने समझाए बगैर उनको भेजा तो बेचारे की शुरुआत है और रवानगी की बात हमने की नहीं और जमात में खुदा न करे कोई 19 हुआ, वो तो उसी को क्या समझेगा? अरे बोलो क्या समझेगा? तबलीग समझेगा। क्या समझेगा? आपने वो वाक्य सुना है? मौलाना यूनुस पुना सुनाते थे, जिसने कोई अमल नहीं देखा होता फिर वो जो देखते हैं उसी को अमल समझते हैं। मौलाना सुनाते थे कि एक आदमी था, उसको नमाज पढ़ते नहीं आती थी, नमाज पढ़ते नहीं आती थी, तो उसने इमाम साहब से कहा मुझे नमाज सीखनी है। सिखाओगे? कहाँ सिखाऊंगा? कहा फला टाइम में तेरे घर आकर सिखाऊंगा। तो वो आदमी ने घर वाली को जाकर कहा मौलाना आएंगे मुझे नमाज सिखाने। कहा बहुत अच्छा है। उसको भी नहीं आती थी, तो उसने घर को जरा साफ वाफ कर दिया और इमाम साहब आए और इमाम साहब ने आकर उसको कहा मैं जैसा बोलूँ ऐसा तुझे बोलने का, तो वो नमाज सिखाने के लिए। तो उसने कहा ठीक। तो इमाम साहब ने कहा बोल अल्लाह अकबर, तो बोला बोल अल्लाह अकबर, ऐसा बोला। तो इमाम साहब कहने लगे अरे अल्लाह बोल मत बोल, तो वो कहने लगा अल्लाह बोल मत बोल। समझे बात? अल्लाह बोल मत बोल यूं। तो इमाम साहब ने जरा चिढ़ कर कहा अरे भाई तुझे कह रहा हूँ अल्लाह अकबर बोल, बोल मत बोल। तो कहने लगा भाई तू बोल मत बोल, अल्लाह अकबर बोल। यूं होते होते दोनों को गुस्सा, इमाम साहब को गुस्सा, एक ठोक दी तो उसने भी एक ठोक दी। इमाम साहब को गुस्सा, उसको पछाड़ा तो उसने भी उसको पछाड़ा। फिर यूं देख रही थी और ये देख कर कहने लगी अच्छा पछाड़ा पछाड़ी इतनी लंबी नमाज है, मुझे क्या खबर थी, वरना मैं ज्यादा पोता लगा देती। थोड़े में ये क्या हुआ, यहाँ क्या गड़बड़ हो गई? वो जानती नहीं थी नमाज क्या होती है, तो जो हो रही है उसी को क्या समझ रही है? अरे बोलो क्या समझ रही है? तो अगर तुमने 3 दिन की जमात को रवानगी की बात नहीं सुनाई तो वहाँ पछाड़ा पछाड़ी होगा, वो भी क्या समझेगा? जरा बोलो, ये भी तबलीग। हालांकि हमारे वहाँ तो 3 काम समझाने के हैं रवानगी में, नकद जमात बनाना, मस्जिदवार जमात बनाना, अपना वक्त अच्छा वो समझाना। तो वो अगर वो समझाने के लिए बैठे ना, इतनी लंबी बात होगी कि तुम सोच भाई 4 काम करने के, 4 काम नहीं करने के, 4 कामों में कम से कम वक्त लगाने का, 4 काम बिल्कुल नहीं बोलने के, कि ये 12 चीजें हो गई। अमीर की इताअत है, फिर उसके बाद नकद जमात बनाना है, मस्जिदवार जमात बनाना है, अपना वक्त अच्छा गुजारना है, और 5 गश्त करने हैं। ये सबको 2-2 मिनट समझाओ तो कितने मिनट होगा? अरे बोलो तो खरे। नकद जमात बनाने का 2 मिनट में समझाओ, 2 मिनट में आया यहाँ कंप्यूटर होगा यूँ समझा देना 2 मिनट में नकद जमात कैसे बनती है। मस्जिदवार जमात बनाना 2 मिनट में समझा दो कंप्यूटर के बटन की तरह, 4 मिनट हो गई। 4 कामों में वक्त लगाना, दावत में, तालीम और ताल्लुम में, जिक्र इबादत और खिदमत में, वो 2-2 मिनट समझाओ तो कितने मिनट हो गई?
हाँ, 4 कामों में कम से कम वक्त लगाना, वो 2-2 मिनट में समझा दो। अरे बोलो, 4 काम बिल्कुल नहीं करने हैं, वो 2-2 मिनट में समझा दो। 4 कामों में कम से कम वक्त लगाना है, वो 2-2 मिनट। 4 काम बिल्कुल नहीं बोलना है, वो 2-2 मिनट में समझा दो। और फिर मस्जिद में कैसे रहना, वो 2 मिनट में समझा दो। अमीर के साथ 2 मिनट में समझा दो। खिदमत कैसे कर, वो सब 2-2 मिनट समझाओ तो भी कितनी मिनट हो जाएगी? हम तो सब कुतुब है, 2 मिनट में ही समझा देंगे साथ। बोला ऐसा ही है ना? अल्लाह भाई, इतको 1-1 मिनट समझाओ तो भी 60 मिनट तो हो जाएगी, फिर ये 15 मिनट में कैसे हो जाता है, आधे घंटे में कैसे हो जाता है? तो सच बताओ, हम जमात के साथ अमानत बरतते हैं या खयानत करते हैं? तो बताओ फिर उसके नतीजे क्या आएंगे? इसलिए गुजारिश है कि ऐसा नहीं करें, रवानगी की बात जम कर करें, चाहे मोड़ा हो जाए। बाज़ मरतबा हमको ऐसा होता है कि भाई देर हो गई है, जल्दी जल्दी, भाई एक तो गुनाह किया ही है, अब नमाज में मोड़ा हो रहा है, 4 की 2 पढ़ रहा है, ऐसा ही ना? भाई मोड़ा हो गया है इसलिए 3 की 1.5 पढ़ डालो, ऐसा करेंगे? भाई एक तो मोड़ा किया, वो खोटा तो किया, अब दूसरा खोटा का करते हो। भाई मोड़ा किया, वो जमात तो मोड़ी गई, तो आप कोशिश ये करो भाई रवानगी पूरी करो, समझ रहे हैं? इसलिए पूरी रवानगी, जैसे 4 महीने की जमात की ऐसे रवानगी करोगे इंशाअल्लाह। और जब वो वापस आए तो वापसी में कर्जदारी भी ऐसे ही करनी, वापसी में कर्जदारी भी ऐसी जमकर कर्जदारी लो उसकी, क्योंकि 3 दिन गए थे तो इतना समझाया, अब तो 27 दिन यहाँ रहना है और लफड़ों में रहना है, अम्मी अब्बा बीवी बच्चे जमेले उसमें रहना है, उसको काम भी करना है, अच्छे अंदाज से रहना है, वो नहीं समझाना पड़ेगा। तो कर्जदारी भी लें, वापसी की बात भी करें, करोगे इंशाअल्लाह। अगर ये काम इस तरतीब पर हुआ तो 100% मजमा भी खड़ा होगा और ये नफा बख्श अमल होंगे। वरना अगर इसको रिवाजी बना दिया तो ये रिवाज बन जाएगा, फिर काम होगा, नफा नहीं होगा। करोगे इंशाअल्लाह। आइंदा साल तक अगर इस तरह सारे हल्के ने मेहनत कर ली तो आप देखोगे एकदम काम उठान पर जाएगा। कल माफ करना, बुरा ना समझो तो एक बात कहूं, आपको बुरा लग जाएगा। मैंने कल कर्जदारी 2 चीजें आपकी सुनी, जोन की कर्जदारी सुनी और परसों असर के मशवरे की कर्जदारी सुनी। गैर महसूस तरीके पर 2 चीजें यहाँ हो रही है। एक, आपका काम इज्तिमा पर जा रहा है। साल भर में सिर्फ पट्टन हल्के में 110 मस्जिदें हैं। पूरे जिले की कितनी मस्जिदें हैं शेख साहब? 140। सिर्फ 8 जमातें पूरे साल में आपकी गई 4 महीने की, पूरे साल में 8 जमातें। कल एक जिले वाले ने सुनाया था कि अभी हमारा इज्तिमा नहीं हुआ लेकिन साल भर में 33 जमातें रवाना हो गई। हमारा काम इज्तिमा पर नहीं होना चाहिए। हम अपने साथी जितने साथी हैं उसकी, जैसे अभी मैंने बताया, इसकी जोड़ियां बनाएं। यही जोड़ियां 3-3 दिन भी जाएगी, यही जोड़ियां सालाना वक्त लगाएगी। अगर ये 15 जोड़ियां अगर हर महीने 3 दिन की इस तरह जमात बनाए तो एकदम लेवल ऊपर जाएगा। 15 जमातें 3 दिन की, यही 15 जोड़ियां अपना सालाना वक्त तय कर दें। अगर सालाना वक्त तय करेगी तो वो मस्जिद की 15 जमातें बनेगी, 4 महीने चिल्ले की, 4 महीने और चिल्ले की 15 जमातें बनेगी, एकदम काम की सतह ऊपर जाएगी। कल एक चीज देखी कि एक अमला बहुत अच्छा है, वक्त लगाया हुआ, 4 महीने वाला, चिल्ले वाला, जमातों को लेकर जाने वाला, और साल भर में चिल्ले की 4 जमातें, पूरे हल्के से 5 जमातें, और वहां 12-12 मस्जिदें हैं। मस्जिद के सतह पर एक जमात भी नहीं पड़ी। तो हम इसको गंभीरता से सोचें। और ये इसलिए नहीं हो रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये इतना बड़ा मजमा, इसमें अक्सर मजमा हुआ है जो अमीर बनकर जाता होगा। अगर यही अपना सालाना वक्त लगाएं तो आप हजरत की सतह एकदम ऊपर जाएगी। मुझे तो दुख हुआ, मैं ऐसा समझा कि आप 90 तक पहुंच गए थे, आपकी इज्तिमा से 90 जमाते जा रही थी, अब नीचे आते आते 47 पर आप गए हो, 47 पर आप गए। और कल देखा जोनों की जमातों की कर्जदारी में, हमारे अतराफ में अभी वो देहात हैं कि इतने सालों की मेहनत के बाद अभी उन देहातों में नमाज शुरू नहीं हुई, उन देहातों में अभी कलमा ठीक नहीं हुआ। और ये यहाँ इस जिले में कोई सोच सकता है? आपकी इस्तेदाद ये है, इस्तेदाद आपके पास है, उसको इस्तेमाल में लाना है, उसकी तदबीर करना है। अगर आप 1 साल अगर मन बनाकर इसको कर लो ना, तो ये देहातों को अपने जिम्मे ले लो और अपनी जितने साथी इस्तेदाद के हैं उनके साथ जोड़ियां बनाकर सालाना और माहाना जोड़ियों की तरतीब बनाओ, एकदम काम ऊपर जाएगी। और देखो, काम नीचे गया इसका मतलब ये ना समझना काम नीचे गया। भाई जिस लिफ्ट में हम बैठे हैं वो लिफ्ट नीचे जाएगी तो हम भी कहाँ जाएंगे? नीचे। जिस ट्रेन में हम बैठे हैं वो ट्रेन रुकेगी तो हम भी रुकेंगे। ऐसा नहीं कि काम जाता है, काम हमसे जुड़ा हुआ है और हम काम से जुड़े हैं। काम के बढ़ने से हम बढ़ेंगे और उसके पीछे आने से हम पीछे जाएंगे। और अगर हम पीछे आए तो चढ़ाव पर से चढ़ी हुई गाड़ी रिवर्स आती है तो और नीचे जाती है। इसलिए हम अपने आप को बतकल्लुफ आगे बढ़ाएं और उसका इलाज ये है कि वो अपनी कुर्बानियों को बढ़ाएं।
हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास एक इलाके के लोग आए और कहने लगे हजरत हमारे वहाँ काम बहुत कमजोर हो गया, दुआ फरमा ले। तो हजरत ने फरमाया काम का कोई जिस्म थोड़ी है कि वो कमजोर हो गया है, वो बैठ गया है, तुम बैठ गए इसलिए काम बैठ गया, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाएगा। अल्लाह ने हमें इस जमाने में तौफीक दी। देखो हम और आप नहीं लगे, हमारे अल्लाह ने हमको लगाया। हजारों लोग चाहते हैं, हजारों लोग करना चाहते हैं, हजारों लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें छांटा है, अल्लाह ने हमें मुंतखब किया है, अल्लाह ने हमें चुना है। ऐसा ना हो जाए कि हमारी नाकदरी की वजह से हम रह जाएं और अल्लाह औरों से काम ले। अल्लाह तो किसी से भी ले लेगा, अल्लाह तो किसी से भी ले लेता है। तो ऐसा ना हो जाए कि हमसे कमजोरी रहे, सुस्ती रहे और हम रह जाएं और दूसरे लोग आगे निकल जाएं। इसलिए हम अल्लाह से माफी मांगे और सब तय करें कब तक जो सुस्ती हुई है उस सुस्ती को दूर करेंगे और अब इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जिस सतह पर है उससे आगे जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन नियत करता है करेंगे? अल्लाह किताबों में आता है अल्लाह तुम्हारे अंदर भीतर में देखता है। अगर तुम अंदर से सच्चे हो अल्लाह तुम्हें सच्चा कर बताएगा। इन यालमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरा, हम तुम्हारे अंदर देखेंगे, तुम सच्चे हो अल्लाह सच्चा कर बताएगा। अंदर के फैसलों में कमजोरी होगी अल्लाह और कैसे से लेगा, हम रह जाएंगे। अल्लाह को तो बहुत मिल जाएंगे, हम रह जाएंगे। इसलिए हम अपने आप को पीछे नहीं रखेंगे। सब तय करते हुए इंशाअल्लाह, तो इसमें ये मजमा तय कर लेके इंशाअल्लाह इस साल से ही हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। इस साल से ही हम अपने आप को, और बहुत दिन हो गए हमें आगे पीछे होते हुए, इंशाल्लाह पहल करते हुए इस साल सबसे पहले तो हम 4 महीने लगा देंगे। लगा दोगे इंशाल्लाह? अब इज्तिमा पर नहीं रखेंगे। दौरान इस साल अपनी अपनी मस्जिदों से जमात बनाकर, मुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हक मुझ पर यह बनता था मैं हर साल 4 महीने जाऊं, हर साल 4 महीने जाऊं। 8 महीने दुनिया की मशगूलियों के बाद, लेकिन अगर मैं हर साल नहीं जा पाता 2 साल में तो जाऊं, 3 साल में जाऊं। मुझे 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। जब बैरून जाना होता है मैं चला जाता हूँ, अंदर से मैं कब से नहीं गया अंदरून में। और मेरी मस्जिद से जमात इसलिए नहीं बनी कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। इसलिए सब तय करो कि इस चीज की पहल मैं करूंगा और इस साल इंशाल्लाह मैं अपने 4 महीने लगाऊंगा। लगाओगे? अरे भाई लगाओगे? और अब खुद नहीं लगाऊंगा, अपनी मस्जिद से जमात बनाऊंगा।